Pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Governmental Guru. Today, I will discuss income tax for financial year 2026-27 and its assessment year 2027-28. Union budget already declared 2026-27. So, what changes actually brought by the government in Union budget 2026 also related to the tax I will discuss. Uh, Here actually income tax budget 2026-27 new tax regime I emphasized on, and also it means you can get also old tax regime, but now popular is the new tax regime. So income tax budget 2026-27 highlights top income tax updates from budget 2026. So definitely this video would be interesting one. Very briefly and lucidly I want to discuss. So now I am going to discuss income tax updates from budget 2026. My friends, join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. My two Telegram channels are there. First one t.me/BAPI2034 and another one t.me/ASIT2034. So you join my Telegram channel and you can get notification for my upcoming videos. Now I am going to start. You know that in budget 2026 there is no change in tax slab for financial year 2026-27. And already I told you I will discuss related to the new tax regime, and also I compare it with old tax regime. But there is no change in tax slab. What slab was there in 2025-26, the same slab is there, but you can get some new updates related to the tax. So tax slab, new tax regime, here I told, because now it is popular one. Financial year 2026-27, assessment year 2027-28, up to 4 lakh it is nil. You know the same slab, new tax regime slab, up to 4 lakh nil. Then 4 lakh gap, 5% can be hiked. 4 lakh to 4 lakh 1 to 8 lakh 5%, 8 lakh 1 to 12 lakh 10%, 12 lakh 1 to 16 lakh 15%, 16 lakh 1 to 20 lakh 20%, 20 lakh 1 to 24 lakh 25%, and above 24 lakh 30%. Just you remember, up to first 4 lakh there is no tax, but then 4 lakh gap, 4 lakh 1 to 8 lakh, 8 lakh 1 to 12 lakh, 12 lakh 1 to 16 lakh, 5% 5% of tax can be hiked, and above 24 lakh it is 30%. The same slab also the government keep, okay, for this year 2026-27. Clear? Then under section 10 deductions, it is very important one, and already I emphasized the same new tax regime 115 BSC. अंडर सेक्शन 10 डिडक्शंस हम देखेंगे न्यू टैक्स रिजाइम में. फर्स्ट वन ऑफिशियल अलाउंसेस. यू सी it is under section 1014 I. These are the exempt to the extent of actual money spent for official work. Okay, any official work, it is related to the allowances. How much allowances actually you are getting related to the it means official journey. Okay, that can be exempted under section 1014 I. Okay, first one it is added with the gross income and then it can be subtracted. So one thing is sure, official journey, so how much expense is there, it can be exempted. Okay, under section 1014 I. Conveyance allowance for travel required for official duties. इसमें आपको नहीं लेना है होम टू ऑफिस कम्यूट के लिए, उसको नहीं लेना है. ठीक है, होम टू ऑफिस कम्यूट के लिए नहीं लेना है. ओनली आपका ऑफिशियल ड्यूटीज में ट्रैवल में जो एक्सपेंस होता है कन्वेंस अलाउंस, वो एक्चुअली एग्जेम्प्ट होगा, डिडक्शंस होगा अंडर सेक्शन 1014 I में. ठीक है, और क्या होगा,
ट्रैवल और टूर अलाउंस, यदि आप टूर में जाते हो, ठीक है, कि आप ट्रांसफर में गए फॉर कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग ऑफिशियल टूर्स और ट्रांसफर्स, तो उसमें जो भी एक्सपेंस होगा वो डिडक्शंस होगा अंडर सेक्शन 1049। दिल्ली अलाउंस आपको मिलता है सपोज जब आप टूर में जाते हो, कि ट्रेनिंग के लिए जाते हो, कि कोई ऑफिशियल पर्पज के लिए जाते हो, जो डेली अलाउंस मिलता है टू कवर डेली एक्सपेंसेस व्हाइल अवे फ्रॉम योर नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी, तो ये भी डिडक्शंस होगा। तो अंडर सेक्शन 1049 में ये सब डिडक्शंस होगा, ठीक है, मगर ऑफिशियल पर्पज, ऑफिशियल ट्रैवल, ओके, ऑफिशियल ट्रैवल में डेली अलाउंस, ठीक है, मगर होम, एक बात याद रखना है, होम टू ऑफिस जो कम्यूट करने के लिए कन्वेंस अलाउंस मिलता है वो नहीं होगा, ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पज यदि आप ट्रैवल करते हो उसमें जो एक्सपेंस होता है वो अंडर सेक्शन 1049 में डिडक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंडीकैप्ड ट्रांसपोर्ट अलाउंस अंडर सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, अंडर सेक्शन 1014 में है, हैंडीकैप्ड ट्रांसपोर्ट अलाउंस एग्जेम्पशन अप टू ₹3200 पर मंथ फॉर स्पेशली एबल्ड एम्प्लॉइज फॉर कम्यूटिंग, ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है जो हैंडीकैप्ड, जो स्पेशली एबल्ड एम्प्लॉइज को, वो जो एग्जेम्पशन होगा अप टू ₹3200 पर मंथ, ठीक है, क्लियर। रिटायरमेंट बेनिफिट्स आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेचुइटी मिलता है अंडर सेक्शन 1010, ग्रेचुइटी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में बता रहा हूं पूरा एग्जेम्प्टेड है। लीव एनकैशमेंट आप जानते हो 300 सुपरएनुएशन टाइम में आप 300 मैक्सिमम 300 EL, ओके, तो एनकैशमेंट होगा, अच्छा ये जो एनकैशमेंट होगा 300 EL का एनकैशमेंट होगा, आपको याद रखना है कि बेसिक पे प्लस DA, जब आपका सुपरएनुएशन रिटायरमेंट है उस टाइम में जो आपका बेसिक पे है उसके ऊपर DA है, ओके, उसके हिसाब से मैक्सिमम 300 EL कैन बी एनकैश्ड, ठीक है, वो अंडर सेक्शन आ जाता है, ठीक है, लीव एनकैशमेंट अंडर सेक्शन 1010, ओके, डबल ए, तो ग्रेचुइटी अंडर सेक्शन 1010, लीव एनकैशमेंट अंडर सेक्शन 1010 AA, कम्यूटेड पेंशन है, कम्यूटेड पेंशन अंडर सेक्शन 1010 A, कम्यूटेड पेंशन यू नो ओल्ड पेंशन में मैक्सिमम 40% आप कम्यूट कर सकते हो, ओके, तो जो पेंशन फिक्स होगा, ठीक है, तो आप उसका मैक्सिमम 40%, अप टू 40% आप कम्यूट कर सकते हो, और उसमें जो भी अमाउंट आपको मिलेगा पूरा एग्जेम्प्टेड है, वो अंडर सेक्शन 10A है, ठीक है, क्लियर। वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, उसका जो सेक्शन है अंडर सेक्शन 1010C, ओके, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट, इफ यू टेक अर्ली रिटायरमेंट अंडर ए वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम, एग्जेम्पशन लिमिट है अप टू 5 लाख इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट टाइम में, तो वहां पर एग्जेम्पशन लिमिट अप टू 5 लाख है, ठीक है, तो वो अंडर सेक्शन 1010C है, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन PPF का बात आएगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यदि आपका PPF है अंडर सेक्शन 1011 में, जैसे आपका मैच्योरिटी टाइम में, ठीक है, जो भी अमाउंट मिलेगा विथ इंटरेस्ट वो पूरा कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वो उनका पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, और उसमें अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, आप जानते हो अराउंड 8% इंटरेस्ट मिलता है, तो उसमें जो मैच्योरिटी टाइम में जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, तो जो भी जितना डिपॉजिट किया प्लस इंटरेस्ट, तो वो सब एग्जेम्प्टेड है, तो अंडर सेक्शन 1011, ठीक है। नेक्स्ट वन यहां पर देखेंगे NPS का बात आएगा, NPS बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, नेशनल पेंशन स्कीम में, तो आप जानते हो कि सेक्शन यहां पर याद रखिए 1012A, ये जो सेक्शन है अंडर सेक्शन, इसमें क्या है आप जानते हो कि सुपरएनुएशन टाइम में आपको मैक्सिमम 60% जो कर्पस है, जो अक्यूमुलेटेड अमाउंट है, जो कर्पस है, उसका 60% आप विथड्रॉल कर सकते हो, मिनिमम 40% एन्युइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट होगा, तो मैक्सिमम 60% आप विथड्रॉल कर सकते हो। क्या वो जो मैक्सिमम 60% विथड्रॉल करोगे, क्या वो एग्जेम्प्टेड है, क्या वो डिडक्टेड है? यस, वो पूरा 60% एग्जेम्प्टेड है,
अप टू 60% एग्जेम्प्टेड है। जब सुपरएनुएशन टाइम में आप विथड्रॉन करोगे रिटायरमेंट टाइम में, वो एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 10(12)(a). एक पार्शियल विथड्रॉल फैसिलिटी है एनपीएस में, उसका सेक्शन देख लीजिए 10(12)(b). अच्छा, पार्शियल विथड्रॉल के ऊपर बता रहा हूं। अभी पार्शियल विथड्रॉल आपका गवर्नमेंट सर्विस 3 इयर्स होना चाहिए, लॉक इन पीरियड 3 इयर्स। 3 इयर्स के बाद आप एलिजिबल हो, मगर ओनली आपका शेयर, एम्प्लॉय खुद का शेयर, जो एम्प्लॉयर शेयर है, जो गवर्नमेंट शेयर है नहीं होगा, कि इंटरेस्ट नहीं होगा, ओनली एम्प्लॉय शेयर, ठीक है। और अभी मैं एनपीएस के ऊपर डाला था, अभी आप पूरा टोटल सर्विस कैरियर में 4 टाइम्स ओके पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हो, और गैप रहेगा, जो 2 विथड्रॉल्स में गैप रहेगा 4 इयर्स गैप रहेगा। तो 4 टाइम्स एंटायर सर्विस में आप पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हो, और 2 विथड्रॉल में क्या गैप रहेगा, 4 इयर्स रहेगा। और इसमें ओनली आपका जो एम्प्लॉय खुद का शेयर से कितना ना अप टू 25% विथड्रॉल कर सकता है। उसमें याद रखना है, कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की इंटरेस्ट ये नहीं होगा, ओनली एम्प्लॉय शेयर। ओके, वन टाइम में मैक्सिमम 25% ऑफ एम्प्लॉय शेयर विथड्रॉल कर सकता है, और वो कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड है, कंप्लीटली उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, वो डिडक्ट होगा, वो अंडर सेक्शन 10(12)(b) में आता है। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, अभी हम देखेंगे, अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन दे दिया, यूपीएस का ऑप्शन दे दिया, तो उसका जो सेक्शन है अंडर सेक्शन 10(12)(a)(b), आपको याद रखना है यहां पर कि एक वन लॉमसम अमाउंट आपको मिलेगा, अश्योर्ड पेंशन तो मिलेगा, रिटायरमेंट टाइम में आपको एक लॉमसम पेमेंट मिलेगा। अच्छा, लॉमसम पेमेंट कैसे कैलकुलेट होगा ना, 1/10 ऑफ योर बेसिक पे डीए, रिटायरमेंट टाइम में आपका जो बेसिक पे है और उस टाइम में जो डीए है, बेसिक पे प्लस डीए, उसका 1/10 कैसे कैलकुलेट, फॉर एवरी 6 मंथ सर्विस। सपोज एग्जांपल देता हूं, आपका एंटायर सर्विस 25 ईयर्स है, तो कितना 6 मंथ सर्विस है, 56 मंथ सर्विस है, 56 मंथ सर्विस है कि नहीं। हाफ ईयरली कितना है, यदि आपका टोटल सर्विस कैरियर 25 ईयर्स है, उसको कन्वर्ट कर दीजिए 6 मंथ सर्विस, 6 मंथ सर्विस कितना होगा, 50 होगा। तो क्लियर, तो उसमें जो कैलकुलेशन होगा, आप देखिए, जो लॉमसम जो पेमेंट आपको मिलेगा 1/10 इंटू बेसिक पे प्लस डीए, और इंटू क्या रहेगा ना, हाउ मेनी हाफ ईयर सर्विस। हाफ ईयर मीन्स आप सपोज 30 ईयर्स आपका गवर्नमेंट जॉब है, तो कितना 6 मंथ्स सर्विस होगा, 60। यदि आपका टोटल जॉब 30 ईयर्स है, सपोज मेरा एग्जांपल में, ओके, टोटल जॉब पीरियड 30 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, क्यूएस में कर दिया, 30 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस को कितना 6 मंथ सर्विस है इंटू 60, ठीक है। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा, और ये जो अमाउंट मिलेगा पूरा टोटल टैक्स फ्री है, ये एक लॉमसम अमाउंट मिलेगा। याद रखिए फॉर्मूला 1/10 ऑफ बेसिक पे प्लस डीए रिटायरमेंट टाइम में, और आप कन्वर्ट कर दीजिए जो क्वालिफाइंग सर्विस है, क्वालिफाइंग सर्विस आपका जितना है, सपोज आपका क्वालिफाइंग सर्विस 27 ईयर्स है, उसको हाफ ईयर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, 54 हाफ ईयर्स। तो एवरी हाफ ईयर का कैलकुलेशन है 1/10 ओके होल इंटू बेसिक पे प्लस डीए इंटू हाउ मेनी हाफ ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड है, टैक्स एग्जेम्प्टेड है। चलो ठीक है, नेक्स्ट वन अंडर सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 अंडर सेक्शन 10(12)(a)(a), ये जो सेक्शन है इसमें क्या बोल रहा है, आपका इंडिविजुअल पर्पस से आप विथड्रॉल कर सकते हो, यू कैन विथड्रॉ अप टू 60% ऑफ योर इंडिविजुअल पर्पस। आप कंपेयर कर दीजिए एक बेंचमार्क और एक इंडिविजुअल पर्पस, जो लोअर होगा, और द बेंचमार्क पर्पस व्हिच एवर इज लोअर। आप मेरा वीडियो है यूपीएस के ऊपर, आप देख लीजिए, मैं क्लियरली डिस्कस कर चुका हूं, क्लियर, ठीक है। तो आपका जो इंडिविजुअल पर्पस है, तो उसमें यू कैन विथड्रॉन अप टू 60% ऑफ योर इंडिविजुअल पर्पस, ठीक है। तो दिस 60% पोर्शन इज फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स,
ठीक है। तो आपको दो कॉर्पस है, एक इंडिविजुअल कॉर्पस है, पूल कॉर्पस है। इंडिविजुअल कॉर्पस में आपका जो शेयर है 10%, गवर्नमेंट का शेयर 10%। मगर एक पूल कॉर्पस होता है, पूल कॉर्पस में गवर्नमेंट का शेयर रहेगा 8.5%। क्योंकि आपको याद होगा कि यूपीएस में जो गवर्नमेंट का शेयर है 18.5%। अभी गवर्नमेंट एनपीएस में कितना है, 14% है, मगर यूपीएस में 18.5 है। मगर जो इंडिविजुअल कॉर्पस होगा, एम्प्लॉय का 10%, ये आईसी बोलते हैं इसको, इंडिविजुअल कॉर्पस, आईसी। ठीक है, आईसी में एम्प्लॉय का 10%, गवर्नमेंट का 10%, मैनेजमेंट शेयर 10%। मगर एक पूल कॉर्पस है, पूल कॉर्पस में गवर्नमेंट का रहेगा 8.5%। ठीक है। तो आप रिटायरमेंट टाइम में आप किससे विथड्रॉल कर सकते हो, आपका इंडिविजुअल कॉर्पस से। इंडिविजुअल कॉर्पस से आप 60% विथड्रॉल कर सकते हो। अच्छा, आपका पेंशन कितना फिक्स होगा, आप तो इंडिविजुअल कॉर्पस का 60% आप विथड्रॉल कर दिए, तो उसमें आप देखिए एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, कितना मिलेगा, अस्योर्ड पेंशन, एपी में लिख दिया अस्योर्ड पेंशन, इनटू इंडिविजुअल कॉर्पस बाय बेंचमार्क कॉर्पस। ये सपोज दोनों समान है, इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस समान है, इनटू कितना, आप विथ 1 माइनस 0.60% मीन 0.6, क्योंकि 60% आप विथड्रॉल कर दिया तो 0.4। सपोज ये आईसीबीसी समान होता है, इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस समान है। आपका अस्योर्ड पेंशन सपोज फिक्स हुआ 40,000, ठीक है, अस्योर्ड पेंशन है, मगर आप 60% इंडिविजुअल कॉर्पस से आप विथड्रॉ कर दिया तो आपको तो 40,000 नहीं मिलेगा। तो 40,000 इंटू आईसीबीसी सपोज समान है, इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस समान है, इंटू 0.4, किंतु 60% आप विथड्रॉल कर लिया तो इसमें आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 16,000 होगा, मिलेगा अस्योर्ड जो पेंशन मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये फुली एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन को याद रखिए, अंडर सेक्शन 10, 12 AA। और एक मैं बताया था अभी पूल कॉर्पस, पूल कॉर्पस क्या है, 18.5% ओनली गवर्नमेंट का शेयर है, क्योंकि इंडिविजुअल आईसी में, इंडिविजुअल कॉर्पस में 10% एम्प्लॉय का 10%, मैनेजमेंट शेयर 10%, मगर पूल कॉर्पस में ओनली 8.5% ये गवर्नमेंट शेयर है। ठीक है, और जब रिटायरमेंट टाइम में जो इंडिविजुअल कॉर्पस पूल कॉर्पस को ट्रांसफर हो जाता है तो देन अस्योर्ड पेंशन फिक्स होगा, वो ट्रांसफर हो जाता है पूल कॉर्पस को, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट का 8.5% है और वहां पर एम्प्लॉय का 10% है और मैनेजमेंट शेयर 10% है। तो रिटायरमेंट टाइम में वो जो कॉर्पस है, इंडिविजुअल कॉर्पस है, वो ट्रांसफर हो जाएगा पूल कॉर्पस को, फिर आपका अस्योर्ड पेंशन फिक्स होगा। ठीक है, तो यहां पर सपोज यहां पर बता दिया आप 60% इंडिविजुअल कॉर्पस से विथड्रॉ कर दिए। अच्छा, इंडिविजुअल कॉर्पस से विथड्रॉ कर दिए मींस इंडिविजुअल कॉर्पस का कितना परसेंट ट्रांसफर होगा पूल कॉर्पस को, 40%। क्या ये जो ट्रांसफर होगा क्या उसके ऊपर कुछ टैक्स है, भाई ये इनकम नहीं है, ये तो ओनली पूल कॉर्पस को ट्रांसफर हो गया, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो 40% ट्रांसफर होगा पूल कॉर्पस को। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, अंडर सेक्शन 16 थोड़ा देख लीजिए, इसमें बहुत पॉपुलर है, जैसे आप बोलते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है, प्रोफेशनल टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, इसका सेक्शन भी आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। मैं फिर न्यू टैक्स रिजाइम को आता हूं, मेरा जो फोकस है मेन न्यू टैक्स रिजाइम है, और इसमें भी ओल्ड को भी कंपेयर में कर रहा हूं। अंडर सेक्शन 16 में डिडक्शन आता है, बहुत पॉपुलर है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन देखिए 16 आइए, ठीक है, अंडर सेक्शन को याद रखिए। इसमें न्यू टैक्स रिजाइम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 है, मगर ओल्ड टैक्स रिजाइम में 50,000 है, न्यू टैक्स में ज्यादा है। प्रोफेशनल टैक्स, न्यू टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स का अंडर सेक्शन याद रखिए 16 III। ठीक है, इसमें न्यू टैक्स रिजाइम में प्रोफेशनल टैक्स ये डिडक्ट नहीं होगा, मगर ओल्ड टैक्स रिजाइम में जो एक्चुअल पेड है, जितना आप प्रोफेशनल टैक्स दे रहे हो वो डिडक्ट होगा, इसमें है, मगर न्यू टैक्स में नहीं है। एंटरटेनमेंट अलाउंस 16II, जो अंडर सेक्शन 16 है उसका सेकेंड वन जो है II, मगर एंटरटेनमेंट अलाउंस वो अलाउ नहीं है न्यू टैक्स रिजाइम में। ओल्ड टैक्स रिजाइम में अलाउ है, ओनली मैक्सिमम 5,000 अलाउ है, मगर मैक्सिमम 5,000। ठीक है, तो अभी क्लियर हो गए। तो इट मीन्स न्यू टैक्स रिजाइम में स्टैंडर्ड डिडक्शन ओनली है 75,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन का सेक्शन याद रखिए 16IA, और ओल्ड में 50,000 है। बाकी न्यू टैक्स रिजाइम में प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसके ऊपर एग्जेम्पशन टैक्स नहीं है, वो डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, मगर ओल्ड में होगा, प्रोफेशनल टैक्स जितना दिया ओल्ड में
डिडक्ट होगा, और एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली ओल्ड टैक्स रिजाइम में होगा, अलाउड अप टू 5,000, मैक्सिमम 5,000। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। इसमें थोड़ा देखेंगे, एनपीएस के ऊपर आ गया, ये मैनेजमेंट शेयर है, 80CCD2 मैनेजमेंट शेयर है, गवर्नमेंट शेयर है। डिडक्शंस एनपीएस वर्सेस यूपीएस दोनों को मैं ले लिया, न्यू टैक्स रिजाइम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गवर्नमेंट शेयर है। एलिजिबिलिटी देखिए, नेशनल पेंशन सिस्टम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ऑल सैलरीड एम्प्लॉइज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एलिजिबल है, सेंट्रल और स्टेट। मगर यूपीएस किसके लिए है? ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मगर एनपीएस तो अभी सभी के लिए है, चाहे गवर्नमेंट हो कि प्राइवेट हो। क्लियर। अच्छा, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन प्राइवेट में 10% है, मगर गवर्नमेंट में 14% है। आप जानते हो एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन प्राइवेट में 10% है, गवर्नमेंट में 14% है, और यूनिफाइड में 18.5% है। अभी मैं बताया था इंडिविजुअल कॉर्पस में कितना जाएगा, 10%, बाकी 8.5% पूल कॉर्पस में जाएगा। मगर यूनिफाइड में जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 18.5% है, ये फिक्स्ड फॉर गवर्नमेंट। अच्छा, डिडक्शन लिमिट आप जानते हो कि नेशनल पेंशन सिस्टम में 80CCD2 में जो मैनेजमेंट शेयर है 14%, वो डिडक्ट हो रहा है अंडर सेक्शन 80CCD2, वो डिडक्शन हो रहा है। और यूनिफाइड में भी वही होगा 14%, गवर्नमेंट दे रहा है 18.5%, मगर वही 14% डिडक्ट होगा, और बाकी जो 4.5% के ऊपर टैक्स लगेगा। आप ये मत मानिए कि गवर्नमेंट का शेयर है 18.5% और पूरा 18.5% के ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन होगा, नो। जैसे एनपीएस में 80CCD2 में जो मैनेजमेंट शेयर, ओके, उसके टैक्स एग्जेम्पशन है उतना ही परसेंटेज, सेम 14%, ओके, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एग्जेम्प्टेड है। बाकी 4.5% जो है वो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ओके, क्लियर हो गया। अभी नेशनल पेंशन सिस्टम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, चलो ये एक बढ़िया है। 80CCD2 में मैनेजमेंट शेयर, गवर्नमेंट शेयर डिडक्ट होगा, ठीक है, 14% जो गवर्नमेंट शेयर है, और यूनिफाइड में 18.5% गवर्नमेंट शेयर है, मगर 14% डिडक्ट होगा, बाकी 4.5% के ऊपर टैक्स लगेगा। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलता हूं। फैमिली पेंशन थोड़ा देखेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन है फॉर फैमिली पेंशन का अंडर सेक्शन 57, ओके, 57, अंडर सेक्शन 57 II, इसको याद रखिए, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां पर भी दो चीज दे दिया, न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम। अच्छा, कितना परसेंटेज एक्चुअली स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा? 1/3, बस 33.33%। आपको जो पेंशन मिल रहा, फैमिली पेंशन जो है, उसका 1/3 स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। ये परसेंटेज ऑफ पेंशन, ओके, 33, यहाँ ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा? 1/3, और ओल्ड टैक्स में भी वही 1/3 है, मगर मैक्सिमम लिमिट 1/3 और 25,000, जो कम है। न्यू टैक्स रिजाइम में 25,000 है, मगर ओल्ड टैक्स में 15,000। तो ये दोनों में आइदर और कर दीजिए, ओके, आइदर और करके आप निकालिए। 1/3 और 25,000, उससे जो भी लेस होगा वही स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। मगर ओल्ड में 33, 1/3 और 15,000, जो लेस होगा वही स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा, ठीक है। और टैक्स हेड, ये कौन सा हेड में जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाता है। आप जानते हो फैमिली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है, जो फैमिली पेंशन मिलता है। क्लियर। तो न्यू में 1/3 और 25,000, whichever is less। सिमिलरली ओल्ड में 33.33% और 15,000, whichever is less, ठीक है। और ये जो टैक्स हेड जो जाता है फैमिली पेंशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाता है, ठीक है, क्लियर। चलो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। अंडर सेक्शन 80 में डिडक्शंस है। न्यू टैक्स रिजाइम में आप बोलते हो कि नहीं, न्यू टैक्स रिजाइम में ज्यादातर ओल्ड टैक्स रिजाइम में सभी डिडक्शंस मिलता है, न्यू टैक्स रिजाइम में बहुत कम डिडक्शंस है। अंडर सेक्शन 80 में एक तो गवर्नमेंट शेयर है एनपीएस का जो 14%, जो मैनेजमेंट शेयर वो तो डिडक्ट हो रहा है, मैं डिस्कस कर चुका हूं उसको, ठीक है। जो 80JJA, ये सेक्शन को याद रखिए, 80JJAA, न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, फॉर बिजनेसमैन और एम्प्लॉयर्स हु हायर न्यू एम्प्लॉइज। यदि कोई बिजनेसमैन, कोई एम्प्लॉयर न्यू एम्प्लॉइज हायर कर रहा है, तो जो एडिशनल कॉस्ट वो बियर कर रहा है, ओके, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर 3 इयर्स। जो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट वो बियर कर रहा है
उसका 30% डिडक्ट होगा फॉर 3 इयर्स। वो 80 JJA ये सेक्शन कभी कभी क्वेश्चन आता है। न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, उसमें जो एडिशनल एम्प्लॉय को रिक्रूट किया गया उसके ऊपर जो कॉस्ट है उसका 30% डिडक्शन होगा और फॉर 3 इयर्स, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, ये बहुत अग्निवीर कॉर्पस फंड जो है 80 CCH, ये अग्निवीर है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अग्निवीर में क्या है, इसमें एम्प्लॉय का, अग्निवीर का कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन दोनों एग्जेम्प्टेड है, डिडक्ट है, फुल डिडक्शन है, क्योंकि अग्निवीर जो है उसका कंट्रीब्यूशन है और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, दोनों का कंट्रीब्यूशन डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80 CCH। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर क्लियरली दे दिया, देखिए, फुल डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशंस मेड बाय एन अग्निवीर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द अग्निवीर कॉर्पस फंड। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, ये थोड़ा टिपिकल है, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24B। इसमें फायदा है, ओल्ड टैक्स रिजाइम में फायदा था, अभी न्यू टैक्स रिजाइम में ये फायदा नहीं है, मगर ये सेक्शन देखेंगे होम लोन इंटरेस्ट के ऊपर है। ठीक है, आप होम लोन लिया है, जो इंटरेस्ट पहले आपको 2 लाख, ओल्ड टैक्स रिजाइम में 2 लाख तक इंटरेस्ट डिडक्शन है, मगर न्यू में नहीं है। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर मैं न्यू टैक्स रिजाइम को एम्फासाइज किया, लिमिट दे दिया, देयर इज नो अपर लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू कैन डिडक्ट फ्रॉम द रेंटल इनकम। ठीक है, तो यहां पर जो न्यू टैक्स रिजाइम में यहां पर फोकस किया रेंटल इनकम। जो सपोज एक प्रॉपर्टी आप लिया है होम लोन लेकर, सपोज एक अपार्टमेंट आप खरीदा है होम लोन लेकर, और उसको आप हायर कर दिए, दे दिया है, देकर आप वो रेंटल इनकम, उसमें आपको रेंट मिल रहा है। आप एक प्रॉपर्टी, एक होम, ठीक है, खरीद लिया कि होम लोन लेके आप कंस्ट्रक्ट किया और उसको रेंट में दे दिया। यहां पर रेंटल इनकम के ऊपर फोकस किया गया है न्यू टैक्स रिजाइम में, याद रखिए। ओके, जब आपका रेंटल इनकम मिलेगा, जिस प्रॉपर्टी, सपोज चाहे अपार्टमेंट हो कि कोई बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप दे दिया और उसमें आपको रेंट मिल रहा है, तब तो आप इसके बारे में सोचेंगे सेक्शन 24B, अदरवाइज सोचना जरूरत नहीं है यदि आप न्यू टैक्स रिजाइम को प्रीफर करते हो। ठीक है, देखो कैलकुलेशन आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। यहां पर एक फॉर्मूला कैलकुलेशन है, फर्स्ट फॉर्मूला देख लीजिए, आपको टोटल रेंट कितना मिले, ओनली आप फोकस कीजिए न्यू टैक्स रिजाइम में, यहां पर रेंट का बात आएगा। अच्छा, कहां से रेंट मिलेगा ना, आप होम लोन लिया, एक घर बनाया और उसको आप रेंट में दे दिया, आपको रेंट मिल रहा है, कि आप एक अपार्टमेंट खरीद लिया और उसको आप रेंट में दे दिया, आपको रेंट मिल रहा है, तब ये सेक्शन के बारे में सोचना है न्यू टैक्स रिजाइम में। तो फॉर्मूला क्या है, आपको टोटल जितना रेंट मिला उससे म्युनिसिपल टैक्सेस को माइनस कर दो, क्योंकि अर्बन एरिया में म्युनिसिपल टैक्स दे रहे हो, तो वो एनएवी है, नेट एनुअल वैल्यू। एक फॉर्मूला है, याद रखिए, जो नेट एनुअल वैल्यू है, आप जितना रेंट मिला, सपोज आपको आपका प्रॉपर्टी से आपको 4 लाख रेंट मिल रहा है, उसमें आपको म्युनिसिपल टैक्स आप कितना दे रहे हो अनुअली, तो वो नेट एनुअल वैल्यू है। अच्छा, नेट एनुअल वैल्यू से आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एनएवी माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो अंडर सेक्शन 24A में आता है। मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी डिस्कस करूंगा। अच्छा, ये जो 30% एनएवी का, ये जो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 30% ऑफ एनएवी, जो नेट एनुअल वैल्यू है उसका 30% आप डिडक्ट कर दीजिए एनएवी से, नेट एनुअल वैल्यू। अच्छा, फर्स्ट नेट एनुअल वैल्यू आपको कैसे मिलेगा, ग्रॉस रेंट, आपको टोटल रेंट माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, तो आपको एनएवी मिल गया। तो यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 30% ऑफ एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो टोटल एनएवी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे निकालोगे ना, 30% ऑफ एनएवी, और वो स्टैंडर्ड डिडक्शन किस सेक्शन में आता है, अंडर सेक्शन 24A में। फिर बैलेंस आ गया, फिर बैलेंस से आपको फुल होम लोन इंटरेस्ट को माइनस करना है, तब आपको एक फाइनल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिलेगा। ठीक है, अभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आप कैसे निकालोगे, सपोज आपको न्यू टैक्स रिजाइम में तो ओनली फोकस है कि आप होम लोन लेकर जो प्रॉपर्टी खरीदा और उससे आपको रेंट मिल रहा है, तो ओनली रेंटल इनकम जब आएगा तब आप सेक्शन 24B के बारे में सोचना है, होम लोन इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। तो एक वही में बताया, यदि आप खुद इट मीन्स
if you are using, suppose you take home loan, purchase apartment and you are residing in your own apartment, तो वहां पर नहीं सोचना है होम लोन इंटरेस्ट के बारे में, नहीं कोई डिडक्शंस, कोई बेनिफिट नहीं है, ओल्ड टैक्स रिजाइम में है, न्यू में नहीं है। यहां पर जो कैलकुलेशन है आपको मैं बताया कि रेंट के ऊपर रेंटल इनकम तो मस्ट है, तो ग्रॉस रेंट माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, वो एनएवी नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू से एक स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करना है अंडर सेक्शन 24A। अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शन की स्टैंडर्ड डिडक्शन का फॉर्मूला क्या है ना, 30% ऑफ एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू का 30% माइनस कर दो, बैलेंस आ जाएगा। फिर बैलेंस से आपको जितना होम लोन इंटरेस्ट, टोटल होम लोन इंटरेस्ट बैलेंस से माइनस कर दो, जो है वही है फाइनल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखने से पूरा पता चल जाएगा, मगर यहां पर याद रखना है कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में उसके ऊपर अप टू 2 लाख बेनिफिट मिल रहा था। ओके, होम लोन इंटरेस्ट का बेनिफिट था, यहां पर हम रेंटल नहीं देखेंगे, यहां पर होम लोन इंटरेस्ट को देखेंगे। ठीक है, अप टू 2 लाख का बेनिफिट था, मगर न्यू में यदि आप रेंट में दे दिया वो प्रॉपर्टी, जो होम लोन लेकर जो प्रॉपर्टी लिया उसमें आपको रेंट मिल रहा है, तो तब आप सोचेंगे। ठीक है, तो यहां पर ओनली रेंटल इनकम को कवर कर रहा है, अदरवाइज होम लोन इंटरेस्ट के ऊपर इधर बेनिफिट यहां पर नहीं है। तो अभी हम कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, थोड़ा अच्छे से ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड है, कैरी फॉरवर्ड के बारे में भी मैं बताया, मैंने जस्ट आई विल डिस्कस कैरी फॉरवर्ड, क्या किसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल को जाता हूं तब आपको पता, न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लीजिए, आप क्लियर हो जाओगे। न्यू टैक्स रिजाइम, आपका अनुअल सैलरी 18 लाख है, कंडीशन दे दिया, आपको रेंट मिल रहा है, जो आप होम लोन लेकर आप एक अपार्टमेंट खरीद लिया और अपार्टमेंट में आप खुद नहीं रह रहे हो, अपार्टमेंट को रेंट के आकर में दे दिया, तो अनुअल रेंट आपको मिल रहा है, अनुअल रेंट 4,80,000। ओके, इट मींस 40K पर मंथ। म्युनिसिपल टैक्स आप 20,000 दे रहे हो पर annum, होम लोन इंटरेस्ट है 6,50,000। मगर इसको याद रखना है, यहां पर होम लोन इंटरेस्ट ज्यादा है अनुअल रेंट से, तो आपका जो होम प्रॉपर्टी होगा वो लॉस इन होम प्रॉपर्टी होगा। कैसे लॉस होगा मैं बता रहा हूं, क्लियर। ये सिचुएशन है, अनुअल सैलरी दे दिया, अनुअल रेंट रिसीव्ड, म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर रहे हो, होम लोन इंटरेस्ट भी, क्योंकि यहां पर जो प्रॉपर्टी आप होम लोन लेकर एक अपार्टमेंट खरीदा और अपार्टमेंट को आप रेंट के आकर में दे दिया, उसी से आपको 4,80,000 मिल रहा है। होम लोन इंटरेस्ट 6,50,000 है, मगर होम लोन इंटरेस्ट अनुअल रेंट रिसिप्ट से ज्यादा है। इस कंडीशन में आप देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ग्रॉस एनुअल जो एक्चुअल रेंट कितना है मैं बताया था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मींस ग्रॉस रेंट, ये है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV। ठीक है, क्लियर। इसमें GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये ग्रॉस रेंट है, टोटल रेंट, वही है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, अच्छा म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दो, क्वेश्चन में है म्युनिसिपल टैक्सेस 20,000 माइनस कर दो, वो माइनस होने के बाद कितना हो, क्या मिला हमको, नेट एनुअल वैल्यू, NAV मिला। NAV क्या है, टोटल रेंट, ग्रॉस रेंट माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, GAV माइनस टैक्सेस। तो GAV समझ में आया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मींस टोटल रेंट, हाउ मच रेंट यू रिसीव्ड, हाउ मच एनुअल रेंट यू रिसीव्ड, और उससे म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दो, तब आपको NAV मिला। 20,000 माइनस होने के बाद NAV कितना आगे मिल गया, 4,60,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाओ, स्टैंडर्ड डिडक्शन एक सेक्शन है अंडर सेक्शन 24A। अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, 30% है, किसका, NAV का। तो आप निकल दो 30% ऑफ 4,60,000, इसी का 30% निकल दो। यहां पर याद रखिए, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है मेरा एग्जाम्पल में, स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां पर 30% ऑफ 4.6 लाख, 4,60,000, क्योंकि NAV है, NAV 4,60,000 है। ठीक है, उसका 30% निकल दो, 1,38,000, वो माइनस होगा। ठीक है, फिर होम लोन इंटरेस्ट, आपको होम लोन मिल रहा है 6,50,000, उसको भी माइनस करो। तो ऐसे आप कैलकुलेट करोगे, आप इसमें कैसे कैलकुलेट करोगे ना, NAV कैसे मिला, GAV जो टोटल रेंट माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, NAV है, NAV से क्या माइनस करोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर क्या माइनस करोगे, होम लोन इंटरेस्ट। तो पूरा टोटल करने के बाद कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है, यही है लॉस इन होम लोन, लॉस इन होम प्रॉपर्टी, -3,28,000।
मगर मजा बात था, ओल्ड टैक्स रिजाइम में 2 लाख सीधा माइनस होता था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। मगर न्यू टैक्स रिजाइम में यहां पर नहीं है। ये कैलकुलेशन जब आ गया, ये जो इतना माने इट मीन्स हम इतना इंटरेस्ट को कवर नहीं कर पाए। होम लोन इंटरेस्ट 3,28,000 ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। ये होम लोन एक्चुअली इतना होम लोन इंटरेस्ट को हम कवर नहीं कर पाए। मगर यहां पर क्या है, जो रेंट था, एक्चुअल रेंट के ऊपर आपका टैक्स नहीं लगेगा, जो रेंटल इनकम था उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा, ठीक है। मगर इसमें क्या था, यदि ये माइनस होता था तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में 2 लाख का बेनिफिट था, मगर अभी न्यू टैक्स रिजाइम में बेनिफिट नहीं है। तो समझ में आ गया। तो अभी इसका फॉर्मूला समझ में आ गया, कैसे हम निकालेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं, जो एनएवी है वो जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, ठीक है। फिर जो एनएवी से आप दो चीज माइनस करो, एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी माइनस होम लोन इंटरेस्ट, माइनस होम लोन इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें हमारा कितना है, माइनस एक अमाउंट आ गया, माइनस 3,28,000, यह आया ना, ये है ना। फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन को चलेंगे। आप देखिए, अच्छा आपका इनकम ओल्ड रिजाइम में जाइए और न्यू रिजाइम में जाइए। आपका सैलरी था 18 लाख, जो न्यू में ओल्ड में दोनों में समान है। अच्छा, ओल्ड में देन स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करो, ओल्ड टैक्स रिजाइम में 50,000, न्यू टैक्स रिजाइम में 75,000, जो 16 आई है अंडर सेक्शन 16 आई है, हो गया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसका अंडर सेक्शन क्या है, 24B। यहां पर तो माइनस 3,28,000 हम कैलकुलेट अभी किया, वही न्यू टैक्स रिजाइम में माइनस 3,28,000, ठीक है कि नहीं, क्लियर। मगर ओल्ड टैक्स रिजाइम में अप टू 2 लाख का बेनिफिट था, अप टू 2 लाख डिडक्ट होता था। मगर यहां पर नॉट अलाउड, कोई डिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि इतना होम लोन इंटरेस्ट को हम एडजस्ट नहीं कर पाया। तो सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी ये अलाउ था, अप टू 2 लाख डिडक्शन डायरेक्टली होता था, मगर यहां पर अलाउ नहीं है, न्यू टैक्स रिजाइम में अलाउ नहीं है। तो यहां पर आप कैलकुलेट कर दीजिए, माइनस करके आपका टैक्सेबल सैलरी इनकम 15,50,000, मगर यहां पर 17,25,000, क्योंकि यहां पे जो 2 लाख था होम लोन इंटरेस्ट यहां पर माइनस हो गया, मगर यहां पर नहीं है, वो न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं है। कैलकुलेशन क्लियर। तो यहां पर जो रेंटल इनकम था, रेंटल इनकम जीरो हो गया, रेंटल इनकम नहीं, क्योंकि रेंटल इनकम को होम लोन इंटरेस्ट कवर कर दिया। आपका देखिए इसी क्वेश्चन में होम लोन इंटरेस्ट था 6.5 लाख, और वो रेंटल इनकम को कवर करने के बाद जो फॉर्मूला में डाला तो वो आ रहा है माइनस 3,28,000, मगर इट मीन्स इतना होम लोन इंटरेस्ट को हम कवर नहीं कर पाया, 3,28,000। मगर ओल्ड में सीधा 2 लाख का डिडक्शन था अंडर सेक्शन 24B में, मगर न्यू में नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो ये जो अमाउंट है, आप यहां पर देखिए, यहां पर 1 लाख, यहां पर तो 2 लाख, इससे 2 लाख तो एडजस्ट हो गया, डिडक्शन हो गया, बाकी कितना रहा 1,28,000, यही है होम लोन इंटरेस्ट। मगर ये कैरी फॉरवर्ड होगा, और नेक्स्ट ईयर ऐसे कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। और इसमें कितना कैरी फॉरवर्ड होगा, 3,28,000 नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इसमें इसीलिए कोई बेनिफिट नहीं है। मैं और एक मजा बात बता रहा हूं, ओल्ड टैक्स रिजाइम में सपोज आपका रेंट नहीं है, आप खुद रहते हो, रेंट जीरो है, ठीक है, ये रेंट जीरो है, माइनस म्युनिसिपल टैक्स दे रहे हो 10,000, ये म्युनिसिपल टैक्स है, एम्प्टी कर दिया। आप खुद, आपका घर को खुद आप यूज कर रहे हो, ये ओल्ड टैक्स के ऊपर मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो जीरो है, टोटल रेंट तो जीरो है ना, आप खुद रहते हो, माइनस 10,000, ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स। तो आपका यहां पर तो कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर तो आपका कोई रेंट नहीं है ना, तो माइनस 10,000, फिर आपका होम लोन आ जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल देखिए, आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में, इसमें आपका सपोज होम लोन इंटरेस्ट है, टोटल सीधा कैलकुलेशन कीजिए, होम लोन इंटरेस्ट है, HI में कर दिया, सपोज 3 लाख इतना होम लोन इंटरेस्ट है, मगर कितना माइनस होगा, 2 लाख, ये तो माइनस होगा। अच्छा, माइनस कैसे होगा, आपका रेंट जीरो है, म्युनिसिपल टैक्स छोड़ दीजिए, आपका आप खुद रहते हो आपका प्रॉपर्टी में, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आप होम लोन लेके अपार्टमेंट खरीदा था, आप खुद रहते हो, तो वहां पर तो कोई नेट एनुअल वैल्यू है तो कुछ नहीं है, क्योंकि रेंट मिलता तो हम GAV NAV ये सब कैलकुलेट करते,
माइनस सीधा 3 लाख होम लोन इंटरेस्ट। तो यहां पर जो लॉस जो आपका प्रॉपर्टी के ऊपर, होम प्रॉपर्टी के ऊपर लॉस इन होम प्रॉपर्टी हो रहा है, -3 लाख हो रहा है, -3 लाख। मगर डिडक्शंस कितना था? डिडक्शंस था 2 लाख, डिडक्शंस था 2 लाख। बाकी जो 1 लाख वो कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। मगर ओल्ड में ये नहीं है। ओल्ड में क्लियर बता दिया, यदि आपको रेंट मिल रहा है, यदि जो होम लोन लेकर आप जो प्रॉपर्टी खरीदा, यदि आप उसको रेंट में दिया है, तब आप सोचना है, कैलकुलेट करना है, वो ओनली रेंटल इनकम को कवर करने के लिए। ठीक है, ये एक एग्जांपल था। और एक एग्जांपल बता रहा हूं, वो पॉजिटिव इनकम है। जैसे इसको भी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। एनुअल सैलरी 15 लाख है, मंथली रेंट रिसीव्ड 50,000, टोटल आपको 6 लाख रेंट मिल रहा है। म्युनिसिपल टैक्सेस 20,000 है। होम लोन इंटरेस्ट कम है, यहां पर उल्टा जस्ट अपोजिट है। होम लोन इंटरेस्ट पेड लेस देन एनुअल रेंट रिसीव्ड। एनुअल रेंट आपको 6 लाख मिल रहा है, मगर होम लोन इंटरेस्ट कितना है? 1 लाख। ठीक है, इसमें कैसे कैलकुलेशन होगा आप देखिए। अच्छा, जो जीए भी है, टोटल रेंट कितना है? 6 लाख है, ले माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस -20,000। अच्छा, आपका एनएवी कितना हुआ? एनएवी है टोटल रेंट माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, ये है एनएवी, यही है एनएवी 5,80,000। अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो एनएवी का 30% निकाल दो, एनएवी का 30%, इसी का 30% आप है स्टैंडर्ड डिडक्शन 5,80,000 का, उसको माइनस करो। ठीक है, फिर आपका होम लोन इंटरेस्ट को माइनस करो। ऐसे करने से आपका पॉजिटिव आ रहा है। देखिए, आपका देखिए कैलकुलेट कीजिए, तो आपका म्युनिसिपल टैक्स के बाद एनएवी कितना है? 5.8 लाख एनएवी है ना। तो उससे आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करो, होम लोन इंटरेस्ट को माइनस करो, मगर यहां पर पॉजिटिव आ रहा है। ये पॉजिटिव मींस इसके ऊपर टैक्स लगेगा, क्योंकि इतना रेंटल इनकम को कवर नहीं हम कर पाए, पॉजिटिव हो गया ये, इतना रेंट, यही है रेंटल इनकम बच गया। तो ये आपका जो ग्रॉस इनकम है उसमें ऐड हो जाएगा और कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए कैसे, इसके बाद में बता रहा हूं। आपका सैलरी कितना है? 15 लाख है। स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजाइम में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? 75,000 है, माइनस कर दीजिए। और वहां पर इनकम कितना पॉजिटिव है ना, ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा। मगर लॉस केस में वो कैरी फॉरवर्ड होगा, मगर यहां पे ऐड हो गया क्योंकि जो रेंटल इनकम होम लोन इंटरेस्ट से ज्यादा है। ठीक है कि नहीं? तो यहां पर ऐड होगा, 15 लाख है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है माइनस, और इतना पॉजिटिव इनकम हो गया जैसे मेरा कैलकुलेशन में। ठीक है, मगर इस केस में क्या है, थोड़ा मैं प्रीवियस को जा रहा हूं। यहां पे आप देखिए, पहले मैं जाता हूं, यहां पर आपका होम लोन इंटरेस्ट ज्यादा है मगर एनुअल रेंट कम है। और इसके हिसाब से देखेंगे तो आपका जो प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी होगा, वो जो नेट इनकम और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस में आएगा। माइनस मीन्स आप रेंटल इनकम को कवर कर दिया, रेंटल इनकम के ऊपर 0 इंटरेस्ट लगेगा। मगर यहां पर क्या है, माइनस आ गया। ओल्ड टैक्स में क्या था? 2 लाख आपको डिडक्शन मिलता था, मगर यहां पर नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रिजाइम में। तो इसलिए कैलकुलेट, ये ओनली कैरी फॉरवर्ड होगा। आप देखिए कैलकुलेशन, आपका ग्रॉस सैलरी था ओल्ड टैक्स में -50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस आएगा क्योंकि होम लोन इंटरेस्ट रेंटल इनकम से ज्यादा था। तो मगर ये जब माइनस आ जाएगा तब आपको कितना छूट मिलेगा? डिडक्शन कितना मिलेगा? 2 लाख। तो 18 लाख -50,000 -2 लाख, इसमें कैलकुलेशन 18 लाख स्टैंडर्ड डिडक्शन -50K और -2 लाख, माइनस करने के बाद इतना आ गया, रेंटल इनकम पूरा कवर हो गया। मगर और इतना जो है कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट को चला जाएगा, नेक्स्ट 8 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। न्यू ईयर में 18 लाख है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, प्रॉपर्टी तो लॉस हुआ, हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको तो लॉस हुआ, मगर इसके ऊपर 2 लाख जो यहां इसके ऊपर 2 लाख डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ये होम लोन इंटरेस्ट, क्योंकि इतना होम लोन इंटरेस्ट को हम एडजस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि होम लोन इंटरेस्ट कितना था? 6.5 लाख था ये क्वेश्चन में। तो 3,28,000 होम लोन इंटरेस्ट को हम एडजस्ट नहीं कर पाए, और इसके ऊपर कोई डिडक्शन नहीं है। मगर ओल्ड में 2 लाख तक डिडक्शन था अंडर सेक्शन 24B में। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन टिपिकल है। आई थिंक दैट आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सरचार्ज के ऊपर चलेंगे। सरचार्ज जो है न्यू टैक्स रिजाइम बहुत अच्छा कर दिया यदि ओल्ड टैक्स रिजाइम के साथ कंपेयर करेंगे।
सरचार्ज क्या है? टैक्स ऑन टैक्स। यदि आपका अप टू 50 लाख है टोटल टैक्सेबल इनकम रेंज, टोटल टैक्सेबल इनकम, यदि आपका टैक्स जिसके ऊपर टैक्स लगे सभी डिडक्शन के बाद आपका ग्रॉस इनकम, फिर डिडक्शन है ना, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जैसे एनपीएस जो मैनेजमेंट शेयर, गवर्नमेंट शेयर, वो भी डिडक्शन होगा। जो भी डिडक्शन करने के बाद यदि आपका टैक्सेबल इनकम अप टू 50 लाख है तो उसके ऊपर सरचार्ज नहीं लगेगा। मगर यदि आपका टैक्सेबल इनकम इसके अंदर आ जाता है 50 लाख टू 1 करोड़ इसके अंदर, तो जितना टैक्स कैलकुलेशन करो, जितना सपोज टैक्स हो गया, सपोज मेरा एक अजम्पशन में बता रहा हूं, सपोज आपका टैक्स, सपोज एग्जांपल देता हूं इसमें, इसी में सपोज आपका टैक्सेबल इनकम, इसको बोलते हैं टैक्सेबल, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, ग्रॉस से आप जितना डिडक्शंस माइनस कर दिए, टैक्सेबल इनकम सपोज 70 लाख हो गया, तो ये रेंज में आ गया। सपोज इसके ऊपर आप टैक्स कलेक्ट करो, सपोज इसके ऊपर आपका टैक्स आ गया, सपोज 15 लाख आ गया, इतना टैक्स आ गया 15 लाख, टैक्स कैलकुलेशन सेस फेस सब करके 15 लाख आ गया, ओनली टैक्स कैलकुलेट करो। यदि 15 लाख आ गया उसके ऊपर फिर टैक्स 10% लगेगा, क्योंकि रेंज है टैक्सेबल इनकम का रेंज 50 लाख टू 1 करोड़ ना, तो आपका टैक्सेबल इनकम कितना है? 70 लाख। सभी डिडक्शंस के बाद आपका टैक्स, इसी के ऊपर टैक्स लगा 70 लाख के ऊपर, तो आपका टैक्स कितना हो गया? 15 लाख हो गया, फिर इसके ऊपर टैक्स लगेगा 10%, उसी को सरचार्ज बोलते हैं, टैक्स ऑन टैक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अबव 50 लाख टू 1 करोड़ 10% है। नेक्स्ट वन, यदि आपका टैक्सेबल इनकम इसके अंदर आ गया, सपोज आपका टैक्सेबल इनकम सपोज है 1.5 करोड़, तो किस रेंज में आ गया? इस रेंज में आ गया, इसके ऊपर इतने के ऊपर टैक्स लगेगा सभी डिडक्शंस के बाद। सपोज आप कितना टैक्स दिया, सपोज इसके ऊपर आपका टैक्स लगा, इसके ऊपर आपका टैक्स लगा सपोज 25 लाख आप टैक्स दे रहे हो, ठीक है, फिर इसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा, क्योंकि आपका टैक्सेबल इनकम का रेंज किसके अंदर आ रहा है? 1 करोड़ टू 2 करोड़ के अंदर। सपोज मेरा एग्जांपल में, मेरा एक अज्यूम करके मैं लिया, टैक्सेबल इनकम 1.5 करोड़ है, उसके ऊपर टैक्स कितना है? 25 लाख, तो उसके ऊपर फिर 15% लगेगा, क्योंकि आपका टैक्सेबल इनकम का जो रेंज है वो किसके अंदर आता है? अबव 1 करोड़ टू 2 करोड़, तो 15% लगेगा। तो याद रखिए, यदि आपका टैक्सेबल इनकम अप टू 50 लाख कोई सरचार्ज नहीं है, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। मगर यदि आपका टैक्सेबल इनकम अबव 50 लाख, माने 50 लाख 1 टू 1 करोड़, 10% लगेगा। इसके अंदर यदि आपका टैक्सेबल इनकम आता है, जितना टैक्स होगा उसके ऊपर फिर 10% लगेगा टैक्स के ऊपर। यदि आपका टैक्सेबल इनकम मोर देन अबव 1 करोड़, 1 करोड़ 1 टू 2 करोड़ होगा, जितना टैक्स कैलकुलेशन होगा उसके ऊपर 15% फिर लगेगा, क्योंकि सरचार्ज टैक्स ऑन टैक्स। और अबव 2 करोड़ 25% है। तो इसमें जो स्लैब है 4 कर दिया, अप टू 50 लाख नील है, अबव 50 लाख टू 1 करोड़ 10% है, अबव 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15% है, और सीधा 15% के बाद अबव 2 करोड़ 25% है। ये न्यू टैक्स के ऊपर, थोड़ा स्लैब ओल्ड टैक्स रिजाइम के ऊपर स्लैब में बाद में बताऊंगा। चलो ठीक है, रिबेट देखेंगे न्यू टैक्स में। ये जो रिबेट है न्यू टैक्स रिजाइम, ओके, तो न्यू टैक्स रिजाइम में आपको रिबेट अभी 60,000 रिबेट मिल रहा है, क्योंकि कैसे ना, आपको 12 लाख तक टैक्स, यदि आपका टैक्सेबल इनकम, यदि आपका टैक्सेबल इनकम, थोड़ा कलर चेंज करता हूं इसमें, याद रखिए, यदि आपका टैक्सेबल इनकम अप टू 50 लाख है, अप टू 12 लाख है, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्सेबल इनकम क्या है? पूरा सभी डिडक्शंस के बाद आपका ग्रॉस इनकम है, उससे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे 75,000 न्यू टैक्स के हिसाब से, फिर आपका जो मैनेजमेंट शेयर है, गवर्नमेंट शेयर है 80/62 वो माइनस होगा, पूरा सभी होने के बाद जिसके ऊपर जो जिस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा वही है टैक्सेबल इनकम। यदि वो अप टू 12 लाख है तो कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, रिबेट आप बोल रहे हो कि रिबेट अभी 60,000 है, रिबेट का सेक्शन 87A है, याद रखिए, जो रिबेट का सेक्शन है वो अंडर सेक्शन 87A है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप बोलो कि रिबेट न्यू टैक्स रिजाइम में रिबेट 60,000 है, ये कैसे कैलकुलेट हुआ? क्योंकि आप जानते हो 0.4 लाख नील है, फिर 4.44 लाख, मोर देन 4 लाख, जैसे
अब यहां पर मैं 0 to 4 लाख नील है, फिर अबोव 4 लाख 1 to 8 लाख कितना है 5% है, और अबोव 8 लाख माने 8 लाख 1 to 12 लाख 10% है। ठीक है, यदि आपका टैक्सेबल इनकम सपोज अप टू 12 लाख रिबेट है। अच्छा, यहां पर आप कैलकुलेट 0 to 4 लाख तो 0 है, 4 लाख to 8 लाख जो है 4 लाख के ऊपर 5% कितना है 4 लाख के ऊपर 4 लाख to 8 लाख ना, 4 लाख 1 to 8 लाख 5% है, तो 4 लाख के ऊपर आप निकाल दीजिए 4 लाख के ऊपर कितना है। ठीक है, तो 5% कितना है 20,000 है। फिर नेक्स्ट वन यहां पर आ जाओ 8 लाख to 12 लाख 10% है, यहां भी 4 लाख का 10% कितना आ जाएगा 40,000 आ जाएगा, तो टोटल कितना हुआ 60,000। मगर ये रिबेट है, ये 60,000 आपको पूरा टोटली टैक्स आपको जीरो है, कोई टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा, इसलिए रिबेट 60,000 है। क्लियर? तो आपको टैक्सेबल इनकम देखना। कुछ कंफ्यूजन होते हैं कि क्या टैक्सेबल इनकम क्या है। अरे भाई, आपका ग्रॉस इनकम से डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, फिर गवर्नमेंट जो एनपीएस का मैनेजमेंट शेयर है, जो भी डिडक्शंस में बताया करने के बाद जिस इनकम के ऊपर एक्चुअली टैक्स लगेगा वही टैक्सेबल इनकम है। और न्यू टैक्स रिजाइम में अप टू 12 लाख यदि आपका टैक्सेबल इनकम टीआई में लिख दिया, यदि आपका टैक्सेबल इनकम अप टू 12 लाख है कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, जो टैक्सेबल इनकम अप टू 12 लाख है, यदि आप टैक्स देते तो कितना देते 60,000 देते, तो 60,000 आपको देना नहीं पड़ेगा, वही रिबेट है अंडर सेक्शन 87 है। और जो सेस है हेल्थ जितना टैक्स, सपोज आपका टैक्स हो गया टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स होगा सपोज 50,000, फिर उसके ऊपर आपको सेस देना है 4%, वो बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्स अंडर सेक्शन, याद रखिए 288B, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अंडर सेक्शन 288B, उसमें आपको 4% एक्स्ट्रा देना है, जितना टैक्स होगा कैलकुलेशन उसके ऊपर फिर 4% देना है। और अंडर सेक्शन 89 यदि आपको अभी जैसे 8 पे आएगा आपको एरियर मिलेगा, तो एरियर जब मिलता है तब रिलीफ मिलता है अंडर सेक्शन 89, उसका भी कैलकुलेशन है। तो जब आपको एरियर मिलेगा प्रीवियस ईयर का एरियर मिलेगा, जैसे अभी सपोज हम अज्यूम करते हैं कि 2027 में आपका 8 पे लागू होगा, मगर 8 पे ऑलरेडी लागू होगा मीन्स आपका जनवरी 1 2026 से, तो आपको एरियर मिलेगा, तो एरियर में आपको टैक्स रिलीफ मिलेगा अंडर सेक्शन 89, वो रिलीफ बोलते हैं 10E, एक फॉर्म है आपको फिलअप करना है। तो आपको याद अभी रखिए, यदि आपको एरियर इनकम आता है तो अंडर सेक्शन 89 में आपको रिलीफ मिलेगा 10E फॉर्म को सबमिट करके। ठीक है, ये थोड़ा भी आइडिया दे दिया। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। कुछ न्यू अभी जो बजट 2026 अभी जो बजट डिक्लेयर हुआ उसमें February 1 को आवर गवर्नमेंट एक्चुअली डिक्लेयर्ड ना, उसमें कुछ टैक्स में इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने, तो उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन जो है, कोई स्लैब चेंज नहीं किया। आप देखिए न्यू टैक्स रिजाइम है, ओल्ड टैक्स रिजाइम कोई स्लैब में चेंजेस नहीं किया। ओके, और वही है टैक्स फ्री इनकम अप टू 12 लाख, यदि आपका टैक्सेबल इनकम अप टू 12 लाख है तो वही है, जैसे लास्ट ईयर 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन था वैसा ही, और आपका टैक्सेबल इनकम अप टू 12 लाख ओके टैक्स नील है, तो वही 60,000 रिबेट मिल रहा है, तो वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, इसमें एक न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025, पहले हमारा जो एक्ट था हम बोल रहे थे इनकम टैक्स एक्ट 1961, या आप याद रखा होगा, बहुत बार क्वेश्चन आया है, मगर अभी हम बोलेंगे अप्रैल 1 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। इट मींस जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 रिप्लेस इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसमें क्या है, थोड़ा रूल्स जो टैक्स फॉर्म से उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज था। ओके, मगर अभी उसको सिंप्लीफाई करने के लिए अभी जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा अप्रैल 1 2026 से। ठीक है, चलो एक बढ़िया बात बता रहा है, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टीसीएस रिलीफ का बात बता रहा है। टैक्स टीसीएस मींस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ठीक है,
अच्छा, आप फॉरेन घूमने के लिए, जो फॉरेन ट्रैवल के लिए इजी कर दिया। यदि आप अभी आपका फैमिली के साथ एक पैकेज में जा रहे हो, ट्रैवल एजेंसी का हेल्प लेके आप फॉरेन घूमने के लिए जापान जा रहे हो, कि जर्मनी जा रहे हो, कि इंग्लैंड जा रहे हो, एक पैकेज में जो ट्रैवल एजेंसी का हेल्प लेके आप ओवरसीज जा रहे हो, अब्रोड जा रहे हो घूमने के लिए, तो उसमें जो आपका सोर्स है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में आपका अभी फ्लैट डिडक्शन होगा 2%। पहले क्या था, ये 5% 20% था, अभी मैं डिस्कस करूंगा, मगर अभी उसको फ्लैट 2% कर दिया। यदि आप ओवरसीज टूर, सपोज ओवरसीज टूर क्या है, एक ट्रैवल एजेंसी का हेल्प लेके आप जाओगे, वहां पर आपका फ्लाइट टिकट रहेगा, होटल रहेगा, फूडिंग रहेगा, और वहां पर ट्रैवलिंग रहेगा पूरा। सपोज आप 5 लाख कोई एक ट्रैवल कंपनी को दे दिया फॉरेन ट्रैवल के लिए, ठीक है, तो जो 5 लाख के ऊपर अभी फ्लैट 2% डिडक्ट होगा टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ठीक है कि नहीं, वो ऑटोमेटिकली 2% माइनस होगा जितना ओवर। सपोज आपका ओवरसीज पैकेज 10 लाख है, उसमें सब कुछ है, आपको फ्लाइट जो ट्रैवल एजेंसी आपको दे रहा है वो फ्लाइट दे रहा है, होटल्स दे रहा है, फूडिंग दे रहा है, आप वहां पर फॉरेन ट्रैवल जो अब्रोड आप जा रहे हो वहां पर घूमोगे, तो पूरा 10 लाख पैकेज है, तो उसके ऊपर आपको 2% दे कट जाएगा फर्स्ट टैक्स। फिर आप जब रिटर्न भरेंगे जो होगा देखा जाएगा, मगर अभी 2% आपको फ्लैट देना पड़ेगा, मगर पहले ज्यादा था, ठीक है। ये एक बढ़िया लाया, तो फॉरेन ट्रैवल क्या हुआ, चीपर हो गया, इंटरनेशनल ट्रैवल थोड़ा चीपर हो गया। भाई न्यू रूल को अभी मैं बता रहा हूं, पहले था ओल्ड रेट था अप टू 10 लाख, यदि आपका पैकेज था 5% था, ठीक है। यदि आप अब्रोड कोई ओवरसीज पैकेज 10 लाख था, कोई ट्रैवल एजेंसी को हेल्प लिया और आप सपोज जर्मनी घूमने के लिए चले गए, और वो पैकेज था 10 लाख। 10 लाख मीन्स क्या है, पूरा रहेगा, फ्लाइट रहेगा, होटल्स रहेगा, और आप फूडिंग रहेगा, और आप जो जर्मनी में घूमोगे वो पूरा 10 लाख ले लिया ट्रैवल एजेंसी, आपको और खर्च करना नहीं पड़ेगा। तो यहां पर ऑटोमेटिकली 5% टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में 5% डिडक्ट कर दिया जाएगा, और यदि आपका पैकेज अबव 10 लाख से 20% था, तो अप टू 10 लाख 5% था टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। सोर्स मीन्स क्या है हमारा कंट्री में, तो आप फॉरेन घूमने के लिए जाओगे, आप 10 लाख खर्च करोगे, अप टू 10 लाख, मगर यहां पर आपको 5% आपका ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। जब आप ट्रैवल एजेंसी को पेमेंट करोगे ऑटोमेटिकली 5% डिडक्ट हो जाएगा टीसीएस। अब 10 लाख है 20%, मगर अभी गवर्नमेंट इसको 2% फ्लैट कर दिया, ठीक है, अभी फ्लैट रेट 2% है, बढ़िया है। इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत हो गया अभी, सो मेनी इंडियंस दे इट मींस दे विजिट अब्रोड, ओके। तो और एक दे दिया एजुकेशन मेडिकल बेनिफिट, क्या दे दिया भाई, फ्लैट 2%। जैसे हम ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं फॉरेन कंट्री, कोई ट्रैवल सपोज आप हेल्प लेके हम ट्रीटमेंट, कोई क्रिटिकल पेशेंट है, हम फॉरेन में ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, और जितना पैसा हम वहां पर अब्रोड में खर्च करेंगे उसका भी 2% फ्लैट रेट हमारा टीसीएस कटेगा। दिस 2% फ्लैट रेट ऑल्सो अप्लाइज टू मनी सेंट अब्रोड, मनी सेंट टू अब्रोड फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। हम पैसा भेजेंगे सपोज एजुकेशन के लिए, नाउ यू सी मेनी इंडियन फैमिलीज, देयर चिल्ड्रन परस्यूइंग स्टडी बेसिकली इन अब्रोड, many children actually now studying in abroad। तो आप पैसा भेज रहे हो कि कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप पैसा भेज रहे हो, तो जितना पैसा आप भेज रहे हो उसका 2% टीसीएस रहेगा, ओके। पहले 5% था, मगर अभी कितना है, 2% फ्लैट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलो, अच्छा फिफ्थ में आ गया, ये एक बढ़िया बात आ गया, फिर इसमें एक नया चेंज लाया कि मोर टाइम टू रिवाइज द टैक्स रिटर्न्स विथ नॉमिनल फी। देखिए आप रिवाइज करते थे, आपको डेडलाइन देता था December 31, इसके अंदर आप टैक्स रिवाइज, जो टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज के लिए आपका जो सेक्शन क्या था, अंडर सेक्शन 139(5), इसमें रिवाइज करना है। तो इतना तक विंडो ओपन था, December 31 तक आप आपका टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। मगर अभी उसको March 31 तक बढ़ा दिया। अभी ये जो था अभी उसको March 31 तक कर दिया, मगर इसके बाद December 31 के बाद आप रिवाइज करना चाहते हो आपका रिटर्न को,
तब आपको एक नॉमिनल फी देना पड़ेगा, मगर आप रिवाइज कर सकते हो। मगर पहले अप टू डिसंबर 31 कोई फी नहीं था, अप टू डिसंबर 31 आपका ओरिजिनल रिटर्न को आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, ये ऑप्शन था। मगर अभी क्या कर दिया, डिसंबर 31 के बाद अप टू मार्च 31 आप कर सकते हो रिवाइज, मगर ये नॉमिनल फी देना है। समझ में आ गया? तो ये 3 मंथ्स थोड़ा बढ़ा दिया अभी रिवाइज, इट मीन्स रिटर्न करने के लिए। तो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स कैन फिक्स एरर्स विदाउट फेसिंग हार्श पेनल्टीज और लिटिगेशन। जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उसको थोड़ा टाइम मिल गया, तो वो उसका जो सपोज जो एरर्स था, कैलकुलेशन एरर था, वो हार्श पनिशमेंट और लिटिगेशन से बचने के लिए वो उसको ठीक कर सकता है। तो पहले देखो, बिफोर क्या था, अप टू डिसंबर 31 था, आप रिवाइज करते थे, मगर अभी न्यू बजट में उसको मार्च 31 तक कर दिया। मगर डिसंबर 31 के बाद आप रिवाइज करते हो तो एक नॉमिनल फी देना है। यहां पर बता दिया कि एक नॉमिनल एक्स्ट्रा मंथ्स ऑफ टाइम, जो गिविंग 3 मंथ्स एक्स्ट्रा, 3 एक्स्ट्रा मंथ्स ऑफ टाइम, बट यू मस्ट पे स्मॉल प्रेस्क्राइब्ड फी। एक नॉमिनल फी आपको देना है। यदि आप डिसंबर 31 के बाद आप करते हो तो एक नॉमिनल फी देना है। मगर बढ़िया है, अभी मार्च 31 तक आप आपका रिवाइज टैक्स रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम, मोर टाइम दे दिया, 3 मंथ्स मोर टाइम दे दिया। नेक्स्ट वन, जो ITR 1 और ITR 2 आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हो वो भी कर दिया 31 जुलाई, उसके अंदर आपको रिटर्न फाइल करना ही करना है। ओके, क्लियर? तो इसको इतना ही याद रखना है, अभी 31 जुलाई के अंदर आपको रिटर्न फाइल करना है, ITR 1 और ITR 2। नेक्स्ट है, यदि आप कोई बिजनेस, स्मॉल बिजनेस है आपका, नॉन ऑडिट बिजनेस, जो बिजनेस को ऑडिट नहीं किया जाएगा, और कुछ सर्टन ट्रस्ट है, उनका डेडलाइन 31 अगस्त है, थोड़ा 1 मंथ और ज्यादा उनको दे दिया। जो नॉन ऑडिट स्मॉल बिजनेस है, अप्लाइज टू स्मॉल बिजनेसेस, जहां पर माने ऑडिट नहीं होता है, नॉट रिक्वायरिंग ऑडिट, और कुछ स्पेसिफाइड ट्रस्ट है, तो उनके लिए 31 अगस्त, मगर नॉर्मल के लिए जुलाई 31, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन बोल दिया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, उनको थोड़ा एरर को ठीक करने के लिए उनको थोड़ा 31 अगस्त तक दे दिया, ठीक है, रिटर्न फाइल करने के लिए, मगर हमको जुलाई 31 तक दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। अच्छा, यहां पर दे दिया टैक्स पेयर्स अलाउड टू अपडेट देयर रिटर्न्स, इसको पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। Taxpayers allowed to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated to reduce litigations at an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year। अभी क्या किया, एक रीअसेसमेंट था, रीअसेसमेंट के बाद आपको कोर्ट जाना है। आप समझ रहे हो कि नहीं? रीअसेसमेंट क्या है? सपोज इनकम टैक्स मुझे नोटिस भेजा, मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं। इनकम टैक्स मुझे नोटिस भेजा कि आप 1 लाख इनकम हाइड किया है, ठीक है, नोटिस भेजा, मगर मैं इसको डिनाई किया, नहीं मैं ऐसा कुछ इनकम हाइड नहीं किया, मैं जवाब दे दिया ग्रीवेंस में। तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको एग्जामाइन किया, रीअसेस किया, क्योंकि मुझे एक बार नोटिस दिया कि आप 1 लाख इनकम हाइड किया है, तो उसको रेक्टिफाई करो। मैं क्या किया, उसको डिनाई किया, नहीं मैं ऐसा कुछ इनकम हाइड नहीं किया। तो अल्टीमेटली इनकम टैक्स ने मुझे रीअसेसमेंट, फिर वो एग्जामाइन किया, मुझे रीअसेस करके फिर भेजा कि आपको एक बार मैं नोटिस भेजा, ठीक है, आप, फिर आपका उत्तर था कि आप हाइड नहीं किया, मगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरा एग्जामाइन के बाद डिटेक्ट किया कि आप हाइड किया है, तो रीअसेसमेंट खत्म हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे? क्या आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते थे, ओल्ड पहले नहीं करते थे। समझ में आ गया? आपको एक बार नोटिस भेजेगा कि बोला जाएगा कि 1 लाख हाइड है, आप रेक्टिफाई कर दो, आप नहीं माना, आप लिख कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि मैं हाइड नहीं किया, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको एग्जामाइन किया, अल्टीमेटली ओके, रीअसेस करके आपको फिर भेजा कि आपको एक बार नोटिस दिया गया रेक्टिफाई करने के लिए, आप उसको नहीं माना और उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एग्जामाइन किया और अल्टीमेट कंक्लूजन है आप हाइड किया है। मगर एक बार रीअसेसमेंट के बाद आप उसको रेक्टिफाई नहीं करते थे, नहीं करने के लिए देता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले, मगर अभी देगा, यही है। मगर अभी जो देगा 10% एक्स्ट्रा टैक्स आपसे लेगा, मैं कैलकुलेशन बताऊंगा। क्लियर हो गया? क्लियर है कि नहीं?
तो उसी के ऊपर अभी हम देखेंगे थोड़ा कैलकुलेशन। देखिए दे दिया रिटर्न अपडेट अलाउड इवन आफ्टर रीअसेसमेंट इज कंप्लीटेड। तो मैं और एक बार बताऊं, आप कंफ्यूजन नहीं होना रीअसेसमेंट क्या है। आपको नोटिस भेजा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और एक बार बता देता हूं, नोटिस भेजा, आपको बोला आप 1 लाख इनकम हाइड किया है, मगर आप उसको रिसीव नहीं किया। आप बोला कि आप डिनाई किया, और फिर बोल दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मैं कोई इनकम हाइड नहीं किया। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको रीअसेस किया, और रीअसेस करने के बाद आपको नोटिस भेजा कि आप 1 लाख अल्टीमेट क्या हुआ, अल्टीमेट आपको रीअसेस के बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजा कि आप हाइड किया है, आप हाइड किया है। मगर जब रीअसेसमेंट के बाद जो आपको नोटिस भेजा, ये जो 1 लाख आप हाइड किया है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करता था। जो पहले आप उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप पास जाओगे इनकम टैक्स कमिश्नर आईटीसी, इनकम टैक्स कमिश्नर से आप जाओगे इनकम टैक्स इनकम टैक्स अपेलेट अथॉरिटी, इनकम टैक्स अपेलेट आईटीए, फर्स्ट इनकम टैक्स कमिश्नर को जाओगे, फिर इनकम टैक्स अपेलेट अथॉरिटी को जाओगे, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ये चलेगा। तो जब आपको नोटिस भेज रहा है, आपको बोल रहा है आप रिसीव नहीं किया, आप डिनाई कर रहे हो, और उसको रीअसेस किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और अल्टीमेटली आपको बोला आप हाइड किया है, अल्टीमेटली उसको एग्जामिन करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला, और उसके बाद आपको रेक्टिफाई करने के लिए नहीं देता था, मगर अभी देगा। ओके, अभी आपको रेक्टिफाई करने के लिए देगा, क्योंकि वो वहां पर जो कोर्ट फोर्ट केस होता था बहुत लंबा चलता था। यहां पर दे दिया नाउ टैक्स पेयर्स कैन स्टिल अपडेट रिटर्न्स इवन आफ्टर रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंक्लूड। ओके, एक बार नोटिस भेजा, आप डिनाई किया, फिर रीअसेस किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फिर आपको नोटिस भेजा कि नहीं इनकम टैक्स आप हाइड किया है, उसके बाद भी आप उसको अपडेट कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा टैक्स पे करके अपडेट कर सकते हो, मगर पहले नहीं था। पहले आपको आईटीसी इनकम टैक्स कमिश्नर, देन इनकम टैक्स अपेलेट अथॉरिटी, नेक्स्ट हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, तो ये लंबा चलता था और आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था। मगर अभी नहीं है, अभी रीअसेस के बाद भी आपके लिए ऑप्शन है, आप ठीक कर सकते हो, जो हाइडिंग इनकम को डिस्क्लोज कर सकते हो, मगर कुछ एक्स्ट्रा 10% एक्स्ट्रा टैक्स आपको देना है। क्लियर? उसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन में दे रहा हूं, एक एग्जांपल आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं यहां पर, ठीक है? यहां पर देखिए अनडिस्क्लोज्ड इनकम 5 लाख, यू फॉरगॉट टू रिपोर्ट 5 लाख रुपीज इन कंसल्टेंसी फीस। आप सपोज फॉरगॉट, मेरा एक अजम्पशन है, 5 लाख रुपीज आप हाइड कर दिया था, और ये जो 5 लाख किस स्लैब में आता है, 30% स्लैब में सपोज आ रहा है आपका इनकम के हिसाब से देखेंगे, आप ये जो हाइड किया वो 30% स्लैब में आता है, ठीक है? आप नोटिस रिसीव किया, टैक्स डिपार्टमेंट सेंड्स यू ए रीअसेसमेंट नोटिस फॉर दिस। रीअसेसमेंट क्या है? फास्ट नोटिस भेजा, फास्ट नोटिस भेजा, सिंपल नोटिस भेजेगा कि आप 5 लाख इनकम हाइड किया है, उसको रेक्टिफाई कर दो। आप मना किया, नहीं मैं ऐसा कुछ हाइड नहीं किया। फिर उसको रीअसेस किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रीअसेस करने के बाद आपको फिर नोटिस भेजा ना, नहीं आप 5 लाख आप पूरा एग्जामिन करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला आप 5 लाख हाइड किया है, वो है रीअसेसमेंट नोटिस, एक सिंपल नोटिस। देन आप जब मना करोगे नहीं मैं हाइड नहीं किया, फिर रीअसेसमेंट नोटिस, वो रीअसेस करने के बाद नोटिस भेजेगा। जो रीअसेसमेंट नोटिस पहले क्या था, एक बार रीअसेसमेंट नोटिस भेज दिया, उसके बाद आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, आपको आईटीसी को जाना है। फिर आईटीसी आपको सपोज आईटीसी से सॉल्व नहीं हुआ इनकम टैक्स कमिश्नर से, आपको इनकम टैक्स अपेलेट अथॉरिटी को जाना है, अपील करना है। फिर वहां पर नहीं हुआ हाई कोर्ट को जाना है, फिर सुप्रीम कोर्ट को जाना है, मगर अभी नहीं है। रीअसेसमेंट के बाद भी आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। अच्छा, इनकम कितना मिस हुआ? 5 लाख। अच्छा, वो कौन सा स्लैब में आता था? मेरा एग्जांपल में 30%, तो आपको कितना देना है? 1,50,000। अच्छा, आप जानते हो कि ड्यू डेट, सपोज जैसे आपको इसी के अंदर में, सपोज एग्जांपल में इसी के अंदर आपको रिटर्न फाइल करना था, मगर आप रिटर्न फाइल नहीं किए। सपोज आप रिटर्न फाइल किए अगस्त 15 में, ये तो लेट हो गया ना, तो चाहे पार्ट हो कि फुल हो, पार्ट ऑफ द मंथ हो फुल मंथ हो, एवरी मंथ में आपको 1% इंटरेस्ट देना है अंडर सेक्शन 234A, अंडर सेक्शन 234A। याद रखो, आपको जुलाई 31 था डेडलाइन था रिटर्न फाइल करने के लिए, मगर आप अगस्त 15 में किया,
तो चाहे पार्ट ऑफ द मंथ हो कि फुल मंथ हो, आपको एवरी मंथ में 1%, ठीक है, 1% आपको टैक्स देना है। एवरी पर मंथ 1% देना है। सपोज मेरा एग्जांपल में देखिए, रीअसेस के बाद आपका इनकम मिस हुआ 5 लाख, वो 30% स्लैब में आता था 1,50,000। अच्छा, सपोज 12 मंथ्स लेट हो चुका है ऑलरेडी, सपोज मेरा एग्जांपल में, तो एवरी मंथ में 1% देना है आपको। ओके, अंडर सेक्शन 234 है, 1% पर मंथ आपको इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट देना है। अच्छा, 1% आपका कितना है, कोर टैक्स कितना है, 1,50,000 कोर टैक्स है। अच्छा, उसका आप कैलकुलेट कीजिए, 1% ऑफ 1,50,000 टैक्स इंटू 12 मंथ्स 18,000। समझ में आया? तो इंटरेस्ट देना है आपको। यहां पर देखिए इंटरेस्ट किसके ऊपर लगता है, आपका 5 लाख इनकम है, मिस हुआ था, कोर टैक्स जो है 30% स्लैब में आता है, 1,50,000 टैक्स है। मगर आप लेट सपोज हो गया 12 मंथ्स, एवरी लेट मंथ में आपको कितना देना है इंटरेस्ट, 1% देना है। किसके ऊपर, ना टैक्स के ऊपर। तो आप कैलकुलेट कीजिए, अभी सपोज मेरा एग्जांपल में 12 मंथ्स लेट हो गया, तो 1% ऑफ 1,50,000 इंटू 12 मंथ्स 18,000 है। और यहां पर मैं बोला था कि रीअसेसमेंट के बाद अभी रेक्टिफाई कर सकते हो, मगर आपको एक्स्ट्रा 10% देना है। किसके ऊपर, ना कोर टैक्स के ऊपर। प्रीमियम अपडेट रिटर्न कोर, जो कोर टैक्स है 1,50,000, उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा आपको देना है, 15,000। तो यहां पर आपको टोटल कितना पे करोगे, 1,50,000, वो 30% स्लैब में आता था, जो इनकम आप हाइड किए थे उसके ऊपर टैक्स क्या है 1,50,000, इंटरेस्ट 18,000, क्योंकि ड्यू डेट के बाद यदि ड्यू डेट क्रॉस हो जाता है, एवरी मंथ में आपको 1% इंटरेस्ट देना है। 1% किसके ऊपर लगेगा, टैक्स के ऊपर। एवरी मंथ आपको सपोज 6 मंथ्स, एवरी मंथ के हिसाब से आप 1% देते जाओगे। तो यहां पर जैसे सपोज आप 6 मंथ्स डिले हो गया, 1% ऑफ आपका टैक्स कितना है 1.5 लाख इंटू 6, ड्यू डेट के बाद, जस्ट ड्यू डेट खत्म हो गया, नेक्स्ट डे ये शुरू हो जाएगा। चाहे पार्ट हो, आप बोलेंगे अगस्त 5 पे, फुल मंथ नहीं है, मगर फिर भी आपको 1% देना है। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर 1,50,000 आपका टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस जो 10% एक्स्ट्रा ले रहा है, क्योंकि रीअसेसमेंट ईयर के बाद फिर आपको चांस दे रहा है, पहले चांस नहीं देता था। आप वो लिटिगेशन, आपको कोर्ट जाना पड़ता था, मगर अभी आप कर सकते हो। तो 1,83,000 आपको देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक बढ़िया बदलाव लाया कि जो लिटिगेशन से जो लॉन्ग पीरियड था कोर्ट में केस फाइट करने के लिए, ये अभी नहीं रहेगा। रीअसेसमेंट के बाद भी आप रेक्टिफाई कर सकते हो, मगर एक्स्ट्रा 10% आपको देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज को थोड़ा आपको ध्यान देना है। अच्छा, यहां पर एक 9th में और एक चेंजेस लाया, प्रपोजल टू रैशनलाइज प्रोसिक्यूशन फ्रेमवर्क। पहले जो प्रोसिक्यूशन था बहुत स्ट्रांग था, जैसे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन प्रोविजंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट टू बी सिंप्लीफाइड एंड मेड लेस हार्श। इसमें क्या है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम अर्लियर, इसको देख लीजिए। व्हाट वाज द प्रॉब्लम अर्लियर, द इनकम टैक्स एक्ट हैज मेनी प्रोसिक्यूशन सेक्शंस, 276C, 277, 278B. Even small or technical mistakes could lead to criminal prosecution, summons, courts, long trials. छोटा मोटा मिस्टेक से, चाहे स्मॉल हो कि टेक्निकल मिस्टेक हो, आपको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, समन्स फ्रॉम द कोर्ट, ये सब था, लॉन्ग ट्रायल्स था। मगर अभी वो तो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स फियर्ड क्रिमिनल एक्शन इवन विदाउट इंटेंट टू इवेड टैक्स। ठीक है, तो अभी क्या किया, ये जो रैशनलाइज किया, आप इंटेंशनली हाइड नहीं, टैक्स इवेड नहीं कर रहे हो। जो टैक्स इवेजन है आप इंटेंशनली नहीं कर रहे हो। इंटेंशनली करोगे तो आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन लगेगा। इंटेंशनली आप टैक्स इवेड नहीं किया तो आपके ऊपर हार्श पनिशमेंट नहीं होगा। जैसे आपको समन, कोर्ट से समन मिलेगा कि आपको कोर्ट में फाइट करना पड़ेगा, फिर जेल जाना पड़ेगा, ये सब नहीं है, पहले था। तो यहां पर दे दिया कि prosecution provisions will be simplified and rationalized, criminal action will be restricted to serious and willful tax। यदि आप सीरियस इवेजन की जानबूझकर आप टैक्स इवेड किया, टैक्स को माने इनकम को छुपाया जानबूझकर, इंटेंशनली, इफ यू हाइड द इनकम, और वेरी सीरियस केस में, तो आप वहां पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होगा। मगर जो माइनर छोटा मोटा मिस्टेक से, स्मॉल की टेक्निकल मिस्टेक कि आपको अनइंटेंशनल मैनर कुछ आपका टैक्स इवेड हो गया है, तो उसमें आपको वो अलाउ करेगा कि आप उसको करेक्ट कर दो।
ओके, विदाउट प्रोसिक्यूशन। देखिए, माइनर, अनइंटेंशनल और वॉल्यूंटरी डिस्क्लोजर। आप चाहते हो कि वॉल्यूंटरी में डिस्क्लोजर कर दूंगा कि मेरा जो इंटेंशन वो गलत नहीं था, कि ये माइनर मिस्टेक है, तो इस केस में आपको फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चांस देगा, आप करेक्ट कर सकते हो विदाउट प्रोसिक्यूशन। मगर हाँ, ये चीज है कि जो पहले ये मैटर में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं छोड़ता था, आपको कोर्ट से समन मिलता था कि आप ये मिस्टेक किया, ये टेक्निकल मिस्टेक किया, कि ये मिस्टेक किया, आप जहां टैक्स को इवेड किया, ठीक है। मगर अभी आपको चांस देगा, हार्श पनिशमेंट नहीं होगा, आपको करेक्शन के लिए चांस देगा। हाँ, यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिटेक्ट कर रहा है कि सीरियस है, आपका जो ऑफेंस है वो सीरियस है और आप जानबूझकर इनकम को छुपाया, तब आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होगा। पर अदर मैटर में वो नहीं होगा, आपको करेक्शन करने के लिए टाइम देगा और आपके ऊपर विदाउट प्रोसिक्यूशन आपको करेक्शन करने के लिए टाइम देगा। आप वॉल्यूंटरी डिस्क्लोजर कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें रैशनलाइज लाया। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। यहां पर एक दे दिया, द बजट proposes जो 10th one, the budget proposes a new scheme for small taxpayers to get a lower deduction certificate or nil deduction certificate through a rule based automated system without approaching the assessing officer। पहले क्या था, सपोज आपको टैक्स देना नहीं है, आप जो डिपार्टमेंट में हो वो टैक्स तो एवरी मंथ में टैक्स जो कलेक्ट, जिसको बोलते हैं टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टैक्स तो वो ले रहा है ना आपका इनकम से। मगर आप पहले क्या था, आप असेसमेंट ऑफिसर को अप्रोच करते थे पहले कि एक्चुअली मेरा जो इनकम है, आप देखिए मेरा जो प्रोजेक्टेड इनकम है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो मेरा डिपार्टमेंट क्यों एवरी मंथ में टैक्स पिंस काट रहा है, ठीक है। तो आप असेसिंग ऑफिसर्स को अप्रोच करते थे, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता था, वो डिफिकल्ट था। मगर अभी ऑटोमेटेड सिस्टम ले आया, ठीक है। अभी क्या है, आपको डिटेल्स कैलकुलेशन करके एक प्रोजेक्शन देना है, ऑटोमेटेड सिस्टम अभी आ गया, रूल बेस्ड ऑटोमेटेड सिस्टम। ये देखिए, तो उसमें ऑटोमेटेड सिस्टम में क्या है, आप आपका प्रोजेक्शन दे देंगे कि मेरा इतना तो इनकम है और जो भी डिडक्शंस होने के बाद न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से वो 12 लाख से कम है, तो मुझे तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे आप एक नील सर्टिफिकेट ले जाएंगे, लोअर डिडक्शन, कि अभी ज्यादा एवरी मंथ में आपका हिसाब से आपका डिपार्टमेंट 1000 सपोज डिडक्ट करना चाहिए, मगर अभी वो 3000 डिडक्ट कर रहा है, ज्यादा है, मगर इतना तो आप टैक्स नहीं देंगे, तो एक लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट। ओके, पहले क्या था, आप असेसिंग ऑफिसर को अप्रोच करते थे, बहुत टाइम लगता था लेने के लिए, मगर अभी ऑटोमेटेड सिस्टम है, आप आपका इनकम को प्रोजेक्शन कर दो और ऑटोमेटिकली सिस्टम में आपको चाहे आपका नील सर्टिफिकेट डिडक्शन है कि लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप डिपार्टमेंट में दे दो। यदि आपका डिपार्टमेंट 3000 काट रहा है, वो 1000 करेगा। यदि आपको टैक्स, आपका प्रोजेक्शन हिसाब से टैक्स आप नहीं देंगे, तो वो एक सर्टिफिकेट मिला नील सर्टिफिकेट, तो आपका अभी डिपार्टमेंट वो टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी ऑटोमेटेड सिस्टम आ गया, रूल बेस्ड ऑटोमेटेड सिस्टम। तो उसके लिए जो जिनका इनकम कम है, जिनको टैक्स देना नहीं पड़ेगा कि कम टैक्स देना पड़ेगा, वो भी इस तरीके का सर्टिफिकेट लाके डिपार्टमेंट में देंगे, तो उनका टैक्स कम डिडक्ट होगा, कि उनको टैक्स नील सर्टिफिकेट होता है तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, एवरी मंथ में आपका टैक्स डिडक्ट नहीं होगा आपका सैलरी से, ठीक है। ये एक बढ़िया, ठीक है, चेंजेस लाया। चलो 11th में यहां पर और एक दे दिया, 6 month फॉरेन असेट डिस्क्लोजर स्कीम वन टाइम। यहां पर एक ऑप्शन दिया 6 month फॉरेन असेट डिस्क्लोजर स्कीम में क्या है, द फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड ए वन टाइम 6 month फॉरेन असेट डिस्क्लोजर स्कीम टू प्रमोट वॉल्यूंटरी कंप्लायंस, allow taxpayers to declare undisclosed foreign income और overseas assets। आप वॉल्यूंटरीली आप डिस्क्लोज कर सकते हो आपका फॉरेन इनकम और फॉरेन ओवरसीज एसेट्स। नो प्रोसिक्यूशन विल बी इनिशिएटेड इफ डिस्क्लोजर इज मेड अंडर द स्कीम। जैसे इस फायदा किसके लिए, स्मॉल टैक्स पेयर्स, सैलरीड एम्प्लॉइज, स्टूडेंट्स, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस। यदि वो डिस्क्लोज नहीं किया है, कुछ फॉरेन इनकम है कि कुछ फॉरेन एसेट्स है, वो डिस्क्लोज नहीं किया है, यदि वो वॉल्यूंटरी डिस्क्लोज कर देते हैं तो उनके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन केस नहीं होगा। तो उसके लिए 2 स्कीम अभी लाया, ठीक है। यहां पर कर दिया वन टाइम 6 month फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम, इसको याद रखिए, वन टाइम 6 month फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम। अच्छा, इसमें क्या है आप देखिए, मैं अभी बताया था 2 ऑप्शन है,
एक फुल्ली नॉन कंप्लायंट टैक्स पेयर, आप कभी भी इट मींस आपका फॉरेन एसेट से आप कभी भी टैक्स नहीं दे रहे हो, आपका जो फॉरेन इनकम है कि आपका फॉरेन एसेट से उसके ऊपर अभी कभी भी टैक्स नहीं दे रहे थे, आप उसको पूरा छुपा रहे थे, और उसका जो वैल्यू है आपका फॉरेन एसेट से अप टू 1 करोड़, मगर आप कोई भी टैक्स नहीं देते थे, उसको नॉन कंप्लायंस, फुल्ली नॉन कंप्लायंट टैक्स पेयर्स। और चाहे फॉरेन इनकम हो कि फॉरेन एसेट्स हो अप टू 1 करोड़, तो उसमें क्या होगा, मस्ट पे एप्लीकेबल टैक्स आपको डिस्क्लोज करना है, एप्लीकेबल टैक्स देना है और पेनल्टी देना है, सब्स्टिट्यूट। समझ में आ रहा है कि नहीं? अप टू 1 करोड़ ये कर दिया। पहले क्या था, आप नॉन कंप्लायंट, आप कुछ कंप्लाई नहीं करते थे, आप उसको डिस्क्लोज नहीं करते थे। यदि अभी वो बताया कि थोड़ा प्रोसिक्यूशन से बचाने के लिए क्या है, अभी वो बोल दिया यदि आपका फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट्स अप टू 1 करोड़ है तो आप डिस्क्लोज कर दो। डिस्क्लोज करने से क्या है, टैक्स लगेगा प्लस एक सब्स्टिट्यूट पेनल्टी लगेगा, तो आगे में आपको कोई लिटिगेशन में आपको कोई कोर्ट केस ये नहीं होगा, कोई प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल ऑफेंस आपके ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। और एक है पार्शियली कंप्लायंट टैक्स पर, आप टैक्स दे रहे थे, कुछ अमाउंट दे रहे थे, जैसे फॉरेन एसेट्स अप टू 5 आप दे रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे थे, दे रहे थे मगर पूरा नहीं दे रहे थे। तो उसके लिए क्या किया, यदि आपका फॉरेन इनकम और एसेट्स अप टू 5 करोड़ है, ठीक है, तो अभी बोल दिया आप उसको डिस्क्लोज कर दो, आपको फिक्स्ड फी एक 1 लाख देना है, फिक्स्ड फी 1 लाख देना है, तो इसमें होने से आपको कोई आपके अगेंस्ट में कोई प्रोसिक्यूशन केस फेस नहीं लगेगा। तो ये दो ऑप्शन लाया फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट के ऊपर, ठीक है। अप टू 1 करोड़ आप पहले कुछ टैक्स फैक्स नहीं देते थे, गवर्नमेंट डिटेक्ट किया और आपका 1 करोड़ फॉरेन एसेट वैल्यू है कि फॉरेन इनकम है, आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो, तो उसमें प्रोसिक्यूशन केस लगता था। मगर अभी आपको ऑप्शन दिया, ये जो बजट 2026 में डिक्लेयर किया ऑप्शन है, आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हो, जो टैक्स है आपको देना पड़ेगा प्लस पेनल्टी देना पड़ेगा। और नेक्स्ट में आप दे रहे थे मगर पूरा जो फॉरेन इनकम फॉरेन एसेट्स का वैल्यू को पूरा डिस्क्लोज नहीं करते थे, तो ये एक पार्टली एक टैक्स दे रहे थे, पार्शियल टैक्स दे रहे थे। अभी बोला यदि इस केस में आपका फॉरेन एसेट्स की फॉरेन इनकम अप टू 5 करोड़ है और अभी डिटेक्ट किया, ठीक है, गवर्नमेंट पहले डिटेक्ट करता था तो प्रोसिक्यूशन केस लगाता था, क्यों आप पूरा इनकम आप डिस्क्लोज नहीं किया है, मगर अभी बोला कि आप डिस्क्लोज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको एक फिक्स्ड फी देना है 1 लाख, और आप डिस्क्लोज करो, कोई ऐसा लिटिगेशन की प्रोसिक्यूशन केस नहीं लगेगा, ठीक है। यहां पे मैं एग्जांपल भी दे दिया, कैटेगरी देखिए, सपोज आपका फर्स्ट केस टोटल वैल्यू मस्ट बी अप टू 1 करोड़, आपका कोई एसेट्स है फॉरेन एसेट्स फॉरेन कंट्री में, उसका वैल्यू है 1 करोड़ है, तो उसका जो द कॉस्ट कैसे लगेगा, वो जो 1 करोड़ तो वो 30% टैक्स स्लैब में आएगा, है कि नहीं, क्योंकि अभी आप डिस्क्लोज किया 1 करोड़, तो वो 30% टैक्स स्लैब में आएगा प्लस पेनल्टी आपको 30% देना पड़ेगा। जो 1 करोड़ डिस्क्लोज हुआ, पहले क्या था, सीधा प्रोसिक्यूशन, आपका फॉरेन इनकम इतना है, आप छुपाया है, तो सीधा आपको प्रोसिक्यूशन, आपके ऊपर एक कोर्ट से समन जाता था और आप कोर्ट में फाइट करोगे, ये था। मगर अभी क्या है, उसको रैशनलाइज कर दिया, आप डिस्क्लोज कर सकते हो और जो टैक्स स्लैब में है टैक्स दे दो प्लस उतना ही पेनल्टी दे दो, और कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है, कोई आपके ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं लगेगा, ठीक है। ये हो गया है। सेकेंड ऑप्शन है कैटेगरी बी में, ऐसा नहीं कि आप टैक्स नहीं देते थे, आप टैक्स देते थे मगर पूरा टैक्स नहीं देते थे फॉरेन एसेट्स के ऊपर, एसेट लिमिट 5 करोड़ से मगर आप 2 करोड़ शो करके टैक्स दे रहे थे, कि 3 करोड़ शो करके टैक्स दे रहे थे, ठीक है नहीं। तो उस केस में गवर्नमेंट अभी बोला, बढ़िया रैशनलाइज कर दिया, पहले प्रोसिक्यूशन केस था मगर अभी बोला आप डिस्क्लोज कर दो और एक फ्लैट 1 लाख फी दे दो, आपके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज को आपको थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, जैसे ये एक बढ़िया है 12th में, टीडीएस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय एनआरआई टू बी डिडक्टेड बाय रेसिडेंट बायर। कोई एनआरआई, सपोज नॉन रेसिडेंट इंडियन, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, लैंड है, बिल्डिंग है, आपको बेचा, तो वहां पर कैसे टीडीएस जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कैसे होगा, क्या कैलकुलेशन है, मैं एक एग्जांपल देकर मैं बताया
यहां पर देखिए, ये सेंटेंस को देखिए, टीडीएस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय एनआरआई टू बी डिडक्टेड बाय रेसिडेंट बायर। अब देखिए, सपोज कोई एनआरआई, सपोज मुझे बेचा कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि मैं परचेज किया कोई बिल्डिंग की कोई लैंड, मैं परचेज किया एनआरआई से, तो वो कैलकुलेशन टीडीएस कैसे कैलकुलेट होगा, गवर्नमेंट को कितना टैक्स जाएगा वो देखेंगे। एक मिड रेंज विला है जो लॉन्ग टर्म, एलटीसीजी लॉन्ग टर्म, ओके, ये लॉन्ग टर्म एक्चुअली, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एलटीसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि वो विला को मैं खरीदा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में थोड़ा ज्यादा होता है, मगर लॉन्ग टर्म क्यों बोलेंगे यहां पर? यू बाय ए विला फॉर ₹80 लाख फ्रॉम एन एनआरआई। सपोज मैं परचेज किया एक नॉन रेसिडेंट इंडियन से, एक विला परचेज किया, उसका प्राइस है ₹80 लाख, और वो एनआरआई उसको कितना दिन तक रखा था? 4 इयर्स के लिए रखा था, हु हेल्ड इट फॉर 4 इयर्स, तो इसीलिए ये लॉन्ग टर्म में आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स होता है 12.5%। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि एनआरआई उसको कितना इयर्स तक हेल्ड किया था? 4 इयर्स, तो वो लॉन्ग टर्म में आ गया, और मैं वही एनआरआई से 8 लाख देकर खरीद रहा हूं, ठीक है, और उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना लगेगा? 12.5%। अच्छा, इस ये जो 80 लाख आ रहा है वो किस रेंज में आ रहा है? अबव 50 लाख, बिलो 1 करोड़, तो जितना टैक्स होगा उसके ऊपर फिर टैक्स लगेगा, क्योंकि आप जानते हो सरचार्ज, सरचार्ज मींस टैक्स ऑन टैक्स। अप टू 50 लाख नील है, यदि आपका टैक्सेबल इनकम मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़, तो आपको 10% देना है सरचार्ज, टैक्स के ऊपर टैक्स देना है, तो 10% सरचार्ज मेरा एग्जाम्पल में लागू होगा। देखिए कैसे कैलकुलेशन है। अच्छा, मैं कितने में खरीदा वो विला को? 80 लाख एनआरआई से, नॉन रेसिडेंट इंडियन से खरीदा, तो टैक्स कितना है? टीडीएस रेट कितना है? लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर टैक्स है 12.5%, 10 लाख है। अच्छा, इसी 10 लाख के ऊपर सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज लगेगा, क्योंकि ये जो 80 लाख किस रेंज में आता है? 50 अबव 50 लाख टू 1 करोड़, सरचार्ज कितना है? 10% है, तो अभी कितना टैक्स है? 10 लाख है, उसके ऊपर फिर सरचार्ज होगा 10%, सरचार्ज कितना होगा? 1 लाख होगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होगा 4%, ठीक नहीं? तो जो टैक्स है यहां पर हो गया 10% हो गया, और यहां पर 1 लाख, ये दोनों को ऐड कर दो, 11 लाख हो गया। 11 लाख के ऊपर 4% कितना है? 44,000। तो टोटल टीडीएस कितना हुआ? 11 लाख 44,000। इतना टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इतना टैक्स तो होगा टीडीएस। समझ में आया कि नहीं? सेल प्राइस है 80 लाख में एनआरआई, जब आप एनआरआई से खरीद रहे हो इमोबल प्रॉपर्टी, क्योंकि एनआरआई उसको कितना इयर्स तक रखा था वो विला को? 4 इयर्स, तो इसलिए लॉन्ग टर्म में आता है। लॉन्ग टर्म में आएगा तो लॉन्ग टर्म गेन टैक्स क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है? 12.5% आफ्टर 2024। तो आपको कितना देना होगा? 12.5%, 12.5% में टैक्स 10 लाख। अच्छा, ये जो रेंज है, आप जो 80 लाख देकर खरीदा वो किस रेंज में आता है? वो मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़, तो सरचार्ज लगेगा 10%। तो सरचार्ज किसके ऊपर? टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स 10 लाख है, उसके ऊपर 10% लगेगा, 1 लाख है। तो यहां पर दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देने से कितना हो गया? 11 लाख, इसके ऊपर 4% शेष है, 4%, 11 लाख के ऊपर 4%, ये दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो 11 लाख के ऊपर 4% शेष कितना है? 44,000। तो टोटल टीडीएस कितना हुआ? 11,44,000। तो आप एनआरआई को पे करोगे 68,56,000, और इतना गवर्नमेंट को जाएगा। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। तो सेलर को जाएगा, जो विला का दाम 80 लाख है, गवर्नमेंट को जाएगा 11,44,000, और आप एनआरआई को कितना पे करेंगे? नॉन रेसिडेंट इंडियन को 68,56,000। तो ये थोड़ा एक रैशनलाइज किया, ये बढ़िया है, ठीक है, क्लियर, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। चलो, एक दे दिया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो 13 में, द बजट नाउ अलाउज इंटर कोऑपरेटिव सोसाइटी डिविडेंड इनकम आज ए डिडक्शन अंडर द न्यू टैक्स रिजाइम। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल एग्जांपल है। प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशन इज मेट, द डिडक्शन इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट दैट द डिविडेंड इज फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स मेंबर्स। अभी इंटर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो डिविडेंड इनकम, जब डिविडेंड इनकम मेंबर्स में डिवाइड होगा,
मेंबर्स जो जितना मेंबर्स है, इंटर कोऑपरेटिव सोसाइटी का जितना मेंबर्स है, जो डिविडेंड इनकम को उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो डिडक्शन होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आपको समझ में देखिए एग्जांपल देखने से आ जाएगा। देखिए सपोज यहां पर मैं क्या बताया, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एसबीआई का शेयर के ऊपर इन्वेस्ट किया है। एसबीआई का शेयर के ऊपर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इन्वेस्ट किया है। सपोज इन्वेस्ट कितना किया है, सपोज 10 लाख इन्वेस्ट किया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है और कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या किया है, एसबीआई का शेयर के ऊपर इन्वेस्ट किया है। अच्छा 10 लाख इन्वेस्ट किया है तो आपको डिविडेंड मिलेगा। तो आप किसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, एसबीआई का शेयर के ऊपर 10 लाख इन्वेस्ट किया है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो एक मेंबर नहीं है, सो मेनी मेंबर्स आर देयर। तो जो डिविडेंड मिलेगा, सपोज आपको यहां पर अभी डिविडेंड 2 लाख मिला है कि नहीं, तो पहले क्या था, जो डिविडेंड मिला सपोज इसमें 1.5 लाख को मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और बाकी जो 50,000 को फर्दर डेवलपमेंट के आकार में कोऑपरेटिव सोसाइटी में यूज किया जाएगा। पहले क्या था, जो मेंबर्स के बीच में जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता था उसके ऊपर भी टैक्स लगता था, वो डिडक्शन नहीं होता था। बाकी जो पैसा बच गया कोऑपरेटिव सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए उसके ऊपर भी टैक्स लगता था। मगर अभी रूल चेंज कर दिया, अभी बोला जो डिविडेंड जितना मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, वो डिडक्शन होगा। ठीक है, तो उसी डबल टैक्स सिस्टम को रिमूव कर दिया। थोड़ा एग्जांपल देखिए समझ में आ जाएगा। जैसे एक डायरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, डायरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसका मेंबर्स है। तो डायरी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एसबीआई का शेयर के ऊपर इन्वेस्ट किया था, मनी इन्वेस्ट किया है। तो स्टेट बैंक कितना दे रहा है डिविडेंड, 5 लाख मेरा एग्जांपल में, क्योंकि डायरी कोऑपरेटिव सोसाइटी एसबीआई शेयर के ऊपर मनी इन्वेस्ट किया है, तो इसीलिए एसबीआई डिविडेंड दे रहा है। एसबीआई का जो प्रॉफिट है एक पार्ट दे रहा है, क्योंकि डायरी कोऑपरेटिव सोसाइटी उसका मनी कहां पर इन्वेस्ट किया है, एसबीआई का शेयर के ऊपर, तो डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मींस व्हाट, डिविडेंड मींस क्या है, यदि हम कोई कंपनी में कि कोई बैंक में कोई कंपनी का शेयर के ऊपर हम इन्वेस्ट किया है, तब आपको कंपनी हमको डिविडेंड देगा, उसका प्रॉफिट का एक पार्ट हमको देगा, क्योंकि हमारा पैसा वो यूज कर रहा है। तो वैसा ही डायरी कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्वेस्ट किया है। ओके, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डायरी कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का शेयर के ऊपर इन्वेस्ट किया है, तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक दे रहा है 5 लाख डिविडेंड दे रहा है। इसमें 4 लाख मेंबर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फार्मर्स के बीच में, क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है बहुत मेंबर्स है। तो जो 5 लाख डिविडेंड मिला उससे 4 लाख मेंबर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये जो मेंबर्स के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ये डिडक्ट होगा, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो फिर डायरी कोऑपरेटिव सोसाइटी कितना खुद के पास रखा, 1 लाख, जो खुद के पास रखेगा फॉर फर्दर डेवलपमेंट, इसके ऊपर टैक्स लगेगा, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। इसके मगर जो मेंबर्स के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। पहले लगता था, पहले मेंबर्स के बीच में जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता था उसके ऊपर टैक्स लगा, और बाकी जो अमाउंट था फर्दर डेवलपमेंट के लिए उसके ऊपर लगता था। मगर अभी जो बजट 2026 में गवर्नमेंट डिक्लेयर किया कि जो डिविडेंड आया, जो मेंबर्स के बीच में जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ओनली टैक्स लगेगा कि जितना अमाउंट डायरी कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद रखा उसका फर्दर डेवलपमेंट के लिए, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये एक अच्छा पार्ट था, यहां पर देख लीजिए, वही मैं उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया। डिविडेंड कितना मिला कोऑपरेटिव सोसाइटी को, 5 लाख मिला, बिफोर था 5 लाख, अभी देखिए न्यू बजट में पहले डिडक्शन अलाउड, कोई डिडक्शन नहीं था, नो डिडक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। यदि जो मेंबर्स के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था उसके ऊपर कोई डिडक्शन नहीं था। मगर अभी जैसे मेरा एग्जांपल में 4 लाख मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जो 5 लाख डिविडेंड से 4 लाख किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मेंबर्स के बीच में, तो वो डिडक्शन होगा 4 लाख, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा,
बाकी कितना बचा 1 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए, ठीक है कि नहीं। तो उसी ओनली इसी के ऊपर टैक्स लगेगा जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ मेंबर्स के ऊपर। मगर पहले क्या था, पूरा 5 लाख के ऊपर टैक्स लगता था ओल्ड टैक्स में, ये बिफोर बजट, ठीक है। मगर आफ्टर बजट ओनली 1 लाख के ऊपर लगेगा, मगर बिफोर बजट कितने ऊपर लगता था 5 लाख के ऊपर, ठीक है। तो अभी इसको याद रखना है, जो मेंबर्स के बीच में जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डिडक्शन होगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। चलो यहां पर एक आईटी सर्विसेज के ऊपर एक चेंजेस लाया। आईटी सर्विसेज सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड रेज टू ₹2000 करोड़ फ्रॉम 300 करोड़। इसमें वो सेफ हार्बर रख दिया 15.5%। इसके ऊपर मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं। इसमें क्या बोला कि आपका जो टर्नओवर है पहले 300 तक करोड़ तक दिया था, अभी जो सर्विसेज है, जो आईटी सर्विसेज है, यदि उसका टर्नओवर अप टू 2000 करोड़ है, अप टू 2000 करोड़ याद रखिए, अभी बढ़ा दिया, तो उसको प्रॉफिट दिखाना है 15.5%, तो तब ऑडिट नहीं होगा। प्रॉफिट मिनिमम प्रॉफिट उसको 15, क्यों, प्रॉफिट के ऊपर तो टैक्स गवर्नमेंट लेगा ना। किसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लेता है, प्रॉफिट के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है नहीं। तो अभी गवर्नमेंट ने बोला कि आपका यदि टर्नओवर अप टू 2000 करोड़ है, आपको आप प्रॉफिट दिखा दिया मिनिमम 15, उससे ज्यादा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि मिनिमम 15.5% प्रॉफिट आप दिखाया, तो जितना प्रॉफिट तो दिखाओगे उसके ऊपर तो टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो मिनिमम 15.5% आप यदि प्रॉफिट दिखा देते हो तो आपको कोई ऑडिट नहीं होगा, ऑडिट फॉडिट नहीं होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपका 15.5% से कम हो जाएगा प्रॉफिट आप शो किया, तब ऑडिट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वही है सेफ हार्बर, यदि आप मिनिमम 15.5% प्रॉफिट दिखा देते हो तो कोई ऑडिट फॉडिट कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जिस कंपनी का टर्नओवर अभी कर दिया अप टू 2000 करोड़, मगर पहले था अप टू 300 करोड़, इतना बढ़ा दिया। तो अभी देखिए न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया, क्लाउडसिक इंडिया इज ए सॉफ्टवेयर फार्म इन हैदराबाद। ये एक इंडियन ब्रांच है, एक फॉरेन कंपनी है, ग्लोबल कंपनी, फॉरेन कंपनी है, मगर उसका ब्रांच है इंडिया में। इट इज द इंडियन ब्रांच ऑफ ए मेजर यूएस, एक्चुअली यूएस क्लाउड कंपनी है, मगर उसका ब्रांच हैदराबाद में है। इसका जॉब जो है कोडिंग है, और उसका ग्लोबल पेरेंट कंपनी को वो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो उसके ऊपर आप देखिए, सपोज उसका टर्नओवर है 1200 करोड़, और इस अभी जो गवर्नमेंट बोला कि आपका टर्नओवर किसके बीच में होना चाहिए, 2000 करोड़ के अंदर होना चाहिए। अब देखिए अभी जो बढ़ा दिया 300 टू 2000 करोड़ रेज टू, तो इसमें ये जो एग्जांपल है, ये जो 1200 करोड़ से लेस देन इक्वल टू कितना है, लेस देन 2000 करोड़ से, है कि नहीं। तो वहां पर अभी जो टर्नओवर को बताया, टोटल रेवेन्यू, टर्नओवर में टोटल रेवेन्यू अप टू 2000 करोड़, यही बताया ना। तो इसका टर्नओवर, ये जो क्लाउडसिक कंपनी है उसका टर्नओवर कितना है, 1200 करोड़ है, और वो ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रहा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, सैलरी और ऑफिस रेंट, ये सैलरीज, ऑफिस रेंट, सर्वर्स, इलेक्ट्रिसिटी जो खर्च कर रहा है, 1000 करोड़ है, दे दिया। अच्छा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 200 करोड़। अच्छा प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, तो यहां पर प्रॉफिट कितना है ना, 200 बाय उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है इंटू 100 है, तो आपको कितना परसेंट हो रहा है यहां पर प्रॉफिट, 20% हो रहा है। मगर बेंचमार्क कितना प्रॉफिट बोला है, 15.5% गवर्नमेंट बोला है, वो सेफ है, तो ये तो ज्यादा हो गया, तो उसमें कोई ऑडिट फॉडिट प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो ज्यादा हो गया। और गवर्नमेंट अभी जो बेंचमार्क दिया, आपको मिनिमम प्रॉफिट कितना शो करना है, 15.5% शो करना है, इससे कम होगा तो गवर्नमेंट ऑडिट करेगा, मगर 15.5% है कि उससे ज्यादा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट तो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स ले रहा है ना। तो अभी बता दिया यही है, आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए, अप टू 2000 करोड़, और मिनिमम प्रॉफिट आपको कितना शो करना चाहिए, 15.5%, उससे कम नहीं होना चाहिए। जो मिनिमम प्रॉफिट आपको शो करना है, मिनिमम प्रॉफिट आपको शो करना है 15.5%, उससे कम नहीं होना है, इससे कम होगा तो ऑडिट वो पूरा चेक करेगा। मिनिमम प्रॉफिट 15.5% है कि उससे ज्यादा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही है, इस मेरा जो न्यूमेरिकल एग्जांपल है,
इसका तो टर्नओवर लेस देन 2000 करोड़ से, और ऐसा भी हम देखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट 1000, इसका कॉस्ट टोटल खर्च हो रहा है। प्रॉफिट तो यहां पर उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है 200 करोड़, ये कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है 200 करोड़, और इसमें हम प्रॉफिट निकालेंगे तो 20% है। तो डील जो है 100 से 15.5% प्रॉफिट, एंड वी वुड नॉट ऑडिट यू। यदि आप मिनिमम इतना परसेंट आप प्रॉफिट शो कर रहे हो तो हम आपको ऑडिट नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक रैशनलाइज किया। ठीक है, तो मिनिमम आपको फॉरेन कंपनी उसका ब्रांच इंडिया में मिनिमम 15.5% प्रॉफिट शो करना है। मिनिमम 15.5% प्रॉफिट शो करोगे और तब उसका आपका ऑडिट नहीं होगा, और उससे कम होगा ऑडिट होगा। ठीक है, कैलकुलेशंस देख लीजिए, वही है। कॉस्ट तो 1000 करोड़ से, और 15.5% प्रॉफिट कितना 155 करोड़, मगर अभी कंपनी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है 200 करोड़। हमारा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी टैक्स ऑफिसर ऑफिस विजिट नहीं करेगा, कोई ऑडिट फॉडिट नहीं होगा, कोई कोर्ट केस नहीं होगा, कि आपके लिए स्ट्रेस नहीं है नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि आप मिनिमम प्रॉफिट 15.5% दे रहे हो, और यहां पर 15.5% प्रॉफिट मींस 155 करोड़ आपको प्रॉफिट देना चाहिए मिनिमम, मगर आप कितना प्रॉफिट दे रहे हो 200 करोड़ है। तो जितना प्रॉफिट दिखाओगे तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। गवर्नमेंट तो अभी फिक्स कर दिया कि आप मिनिमम 15.5% प्रॉफिट शो करो और टैक्स दो। इससे कम होगा तो आप आपका टैक्स ऑफिसर विजिट करेंगे, फिर कोर्ट केस होगा, बहुत लफड़ाबाजी चलेगा। ठीक है, चलो, और एक 15th में टैक्स हॉलीडे, जो क्लाउड सिक कंपनी, यदि फॉरेन फार्म्स यदि उनका सर्विसेज सेटअप करते हैं, देखिए टैक्स हॉलीडे टिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। टैक्स हॉलीडे टिल 2047 फॉर फॉरेन फार्म्स दैट प्रोवाइड्स क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज क्या है, जैसे पेन ड्राइव में आप कुछ फोटो रखा है पेन ड्राइव में, आई क्लाउड में, तो वो फिजिकली फोन में नहीं है, वो ड्राइव में है, जैसे गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, उसमें फिजिकली फोन में नहीं है मगर गूगल ड्राइव में है। तो वैसा क्लाउड सर्विस, यदि कोई फॉरेन फार्म वो क्लाउड सर्विस का फैसिलिटी दे रहा है और उसका सेंटर्स ओपन कर रहा है, तो उसके लिए टैक्स हॉलीडे है अप टू 2047। ठीक है, कोई टैक्स नहीं देगा अप टू 2047, और उसका सर्विसेज क्या होना चाहिए, क्लाउड सर्विसेज। और जो बड़ा बड़ा बिग कंपनीज है वो भी क्लाउड सर्विसेज दे रहे हैं, यदि उनका कंपनी वो उनका ब्रांच सेटअप करते हैं इंडिया में और ये फैसिलिटी देते हैं, तो टिल 2047 ओके टैक्स हॉलीडे फॉर देम। ये था चेंजेस था, 15 चेंजेस के ऊपर मैं बताया, अप टू डेट किया। और थोड़ा ओल्ड टैक्स स्लैब देख लीजिए, आप जानते हो ओल्ड टैक्स के ऊपर अभी थोड़ा इतना डिमांड नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। यहाँ पर नॉर्मली इंडिविजुअल्स के लिए अप टू 2.5 लाख नील है, और जैसे इंडिविजुअल्स के लिए 2.5 to 5, देखिए 5% है, 2.5 लाख टू 5 लाख, 2.5 to 5 लाख 5% है। देन मोर देन 5 लाख टू 10 लाख 20% है, और मोर देन 10 लाख 30% है। ये इंडिविजुअल्स के लिए, लेस देन 60 ईयर्स। तो आपको याद रखना है कि अप टू 2.5 लाख नील है, ओके, अबोव 2.5 टू 5 लाख कितना है 5% है। फिर अबोव 5 लाख ओके टू 10 लाख, ये आपका 20% है, सीधा डायरेक्ट 5% के बाद 20% है, और अबोव 10 लाख 30% है। तो यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर जो बता दिया ये तो नील है, मोर देन 2 लाख टू 5 लाख 5% है, मोर देन 5 लाख टू 10 लाख 20% सीधा, और अबोव 10 लाख 30% है। और सिमिलरली सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर्स दे दिया। सीनियर्स के लिए अप टू 3 लाख नील है, 60 to 80 ईयर्स, अप टू 3 लाख नील है, और देन अबोव 3 लाख टू 5 लाख 5% है, और अबोव 5 लाख टू 10 लाख 20% है, और अबोव 10 लाख 30% है सेम। मगर सुपर जो मोर देन 80 ईयर्स ओके सीधा अप टू 5 लाख नो टैक्स, मोर देन 5 लाख टू 10 लाख 20%, एंड अबोव 10 लाख 30%। ठीक है, और यहां पर जो रिबेट आपको मिलेगा 12,500 रिबेट है, क्योंकि ये रिबेट जो अंडर सेक्शन
87A, यही तो रिबेट है ना। अच्छा, इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। 12,500 कैसे मिला? क्योंकि आपका टैक्सेबल इनकम, ठीक है, तो आपका टैक्सेबल इनकम लेस देन इक्वल टू 5 लाख, ये बता दिया। टैक्सेबल इनकम TI में लिख दिया, जिस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा सभी डिडक्शन के बाद। मगर ओल्ड टैक्स में बहुत कुछ डिडक्शंस है जो न्यू टैक्स में नहीं है। तो आपका टैक्सेबल इनकम पूरा डिडक्शंस के बाद आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख की 5 लाख से कम है, नो टैक्स। आप कैलकुलेट करके देखिए, क्योंकि आप स्लैब में जाएंगे अप टू 2.5 लाख तो नील है, मोर देन 2.5 टू 5 लाख कितना है? 5% है, तो 12,500 ना, तो वो रिबेट यहां पर 12,500 और टैक्स के ऊपर सेस वही 4% है। और यदि एरियर मिलता है अंडर सेक्शन 89 में, आप जो एरियर इनकम आप शो करोगे और वो टेनी फॉर्म शो करके आपको वहां पर रिलीफ मिलेगा। ठीक है, क्लियर। और नेक्स्ट सरचार्ज, यहां पर मैक्सिमम सरचार्ज 37% है, मगर ओल्ड में आप देखा होगा, ओल्ड में जो सरचार्ज है मैक्सिमम 25% है। यहां पर देखिए अप टू 50 लाख नील है, ये भी नया में है। पुराना में क्या है? अबव 50 लाख टू 1 करोड़ 10% है, अबव 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15% है। ठीक है, यही है। मगर न्यू टैक्स रिजाइम में अबव 2 करोड़ कर दिया 25%, बस और कुछ नहीं। यहां पर कर दिया फिर अबव 2 करोड़ टू 5 करोड़ 25%, फिर अबव 5 करोड़ 37, यानी मैक्सिमम 37% है ओल्ड टैक्स रिजाइम में। मगर न्यू में अलग है। न्यू में क्या किया? सपोज हम न्यू को देखेंगे, यहां पर मैं न्यू लिख देता हूं। न्यू में देखेंगे जो न्यू टैक्स रिजाइम, ये वही सेम है, नील है, ये सेम है, 10% है अबव 50 लाख टू 1 करोड़। ये भी सेम है, 15% है, अबव 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15% है। और न्यू में अबव 2 करोड़ कर दिया 25%, अबव 2 करोड़ और उसके बाद नहीं है। मगर यहां पर फिर एक स्लैब रखा, अबव 2 करोड़ टू 5 करोड़ 25%, अबव 5 करोड़ 37%। मगर न्यू में अबव 2 करोड़ 25%, बस। तो न्यू टैक्स रिजाइम में मैक्सिमम सरचार्ज है 25%, मगर ओल्ड में मैक्सिमम सरचार्ज है 37%। तो आज इतना ही है। पूरा मैंने क्लियरली मैं डिस्कस किया, क्लियरली जो भी न्यू अपडेट्स है बजट में 2026 में, मैं उसको बताया। न्यू कोई स्लैब में चेंजेस नहीं आया, और कौन सा सेक्शन में न्यू टैक्स रिजाइम में कौन सा सेक्शंस में आपको डिडक्शन मिलेगा वो भी बताया। और ओल्ड टैक्स रिजाइम के ऊपर अभी चार्म कम हो चुका है, फिर भी उसका ऊपर स्लैब में बताया। और बड़े बड़े अपडेट्स को मैं न्यूमेरिकली एग्जाम्पल देकर क्लैरिफाई किया। ठीक है, आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।